गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते। आज जो वर्कशॉप है दिवाली के दिनों में ही है, तो इसलिए पहले तो सबका स्वागत, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कि आप आ सके। आपने ये निर्णय लिया कि मुझे जाना है, क्योंकि बच्चे की परवरिश के लिए हमें आपकी सहयोग की अति आवश्यकता है। तो इसलिए हम ऐसी कार्यशालाएं रखते हैं ताकि हम सब मिलकर इन विषयों पे चर्चा कर सके कि कैसे बच्चे का भविष्य हम उज्जवल बना सके मिलकर। तो ही इस देश का भविष्य उज्जवल होगा ना। अगर हम अच्छे नागरिक बनाएंगे तो ही देश उन्नति के मार्ग पे जा सकेगा। तो मैं पहले तो विनती करता हूँ प्रिंसिपल से कि आप सबका स्वागत कीजिए और ऐसे जो कार्यशालाएं हम रखते हैं उनका क्या महत्व है वो बताएं हम सबको। Hello, good morning everyone. It's a great pleasure to see you all. Today we have gathered here for a parenting workshop. So I would like to begin with that. So do you know what do you mean by parenting workshop? Right. It's a structure or a design in which you can train or make your child well disciplined. Discipline means what? अनुशासन. सो पेरेंटिंग स्किल यानी परवरिश कार्यशाला. तो वर्कशॉप हम क्यों अरेंज करते हैं? व्हाई आर वी अरेंजिंग दिस वर्कशॉप? लाइक दिस ईयर ऑल्सो आई थिंक दिस इज द 5th वर्कशॉप. तो इसका अगर आपने कुछ अमल में किया है घर पे, लाइक in last workshop I told you that keep it in like practical in your house. Behave how you can spend quality time with your child. So अगर उसके बाद आपको कुछ चेंज लगा, what are your response? You can send it on our school WhatsApp. You have the number. So workshop कार्यशाला हम करते हैं, लेकिन इसका महत्व क्या है? What is the importance of these workshops? क्यों करते हैं हम? Why? Because we want to raise our child in make him well disciplined. उसको अनुशासन के लिए करना है हम. So if we make our child well disciplined, so discipline, what is discipline? Discipline is nothing to train our child to have a self control. Why do we need that? वो क्यों चाहिए हमें? If you want to have a long-term goal, maybe academics, maybe physical, maybe financial, then if he is well disciplined, then only he can achieve the goal. So our main aim is, maybe we as an educator and you as a parent, what is our aim? Our aim is to make our child well disciplined. उसको अनुशासन में हमें रखना है. So like I am also a parent before principal. So I would like to share my views. मेरे अनुभव, like before this, truly speaking, इससे पहले मैंने इतने वर्कशॉप नहीं किए. But here, when I am here from last 6 months, this is the 5th workshop. And I have learned many things from this as a parent, because I also have one daughter and one son. तो उनको मुझे बहुत सी जानकारी मिली and I am keeping them in practice to make a good, a healthy bonding or healthy relationship with my child as a son and one daughter. So it's a great pleasure, and I just want to say that the parents, those who are not coming, जो नहीं आते हैं, they are really going to miss it something. And those who have come, I'm happy that you care for your child. Our today's workshop is regarding positive discipline. As a parent, we all know that we want our child well disciplined. उसमें अनुशासन होना चाहिए. हमारे पेरेंट्स ने भी हमें अनुशासन सिखाया, ठीक है, हम भी सिखाना चाहते हैं, लेकिन the way they treat us, like even I as a parent followed the method which was wrong, like मारना या कुछ भी करना.
Like yesterday only my son asked, what are you doing? I said, I'm just preparing for the speech. So he asked the topic. I said, positive discipline. So he started laughing. And then he said, मम्मी आपने तो मुझे बहुत मारा. And even I remember कि मैंने मारा था उसको. तो किस बात पे? अंधेरा होने पे गार्डन में से घर पे आना है. If we live in a society, एक सोसाइटी में रहते तो गार्डन थोड़ा दूर था एंड वी कैन नॉट गो विद देम. वो जब भी आता था 1-2 दिन बोला के अंधेरा हो जाए यानी घर पे आना. नहीं आया. तीसरे दिन लकड़ी लेके उसको मारा. So that is how we don't want our children like अभी जो है we should have that. So that is the difference between negative discipline and positive discipline. Then I made him explain, okay, this is positive discipline, this is negative discipline. So here I am very thankful that I have joined this institution and the students here where I have experience, I have seen other students also. मैंने दूसरे बच्चे भी देखे हैं, लेकिन यहाँ के बच्चे जैसे मुझे एज ए प्रिंसिपल मैम कोई और स्कूल में मैं थी तो वो डर के भाग जाते. दैट्स ऑल्सो नॉट गुड. वो भी सही नहीं है. लेकिन यहाँ पे इतने प्रेम से वो लोग मुझे बुलाते हैं प्रिंसिपल मैम बिना डरे. दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ विवेक सर एंड राखी एंड आवर साइकोलॉजिस्ट पलक देसाई. सो हियर व्हाट वी give them is not to be afraid, not to be frightened. You ask questions in class. Even if I feel, आप भी देखना दूसरे बच्चों के सामने आपके बच्चे में क्या इम्प्रूवमेंट. So today we'll explore what do you mean by positive discipline. So as a parent, you will learn many new strategies and techniques how to make your child control himself, how to behave himself, like behave with others, how to develop a good relationship. You also can learn how to develop a good bonding or a healthy relationship with your child. Our experts here today are our director, Dr. Vivek Desai, and Dr. Rakhi Thakur, and our psychiatrist, Mrs. Palak Desai. So now I would request Dr. Vivek Desai to explore or to explain and demonstrate what really positive discipline means. यहाँ जो शब्द लिखा है पॉजिटिव डिसिप्लिन, इसका हिंदी ये है कि डिसिप्लिन माने अनुशासन. पॉजिटिव सकारात्मक रूप से हम कैसे बच्चे को अनुशासन सिखा सकते हैं, अनुशासित कर सकते हैं. पहले तो अनुशासन क्या है और क्यों अनुशासन हमें बच्चों को सिखाना चाहिए या क्यों हमें खुद अनुशासित रहना चाहिए, उसके बारे में हम थोड़ा सोचते हैं. यहाँ एक बच्चे का फोटो है, सामने मार्शमेलो पड़ा है. मार्शमेलो एक प्रकार का स्वीट है पाश्चात्य में. तो हमारा सामने कोई मिठाई पड़ी है, चॉकलेट पड़ी है, तो वस्तु भोग के लिए सामने ही है, लेकिन फिर भी हम उसका उपभोग ना करें, इसको अनुशासन कहते हैं. सरल है ना. क्यों नहीं करना है? क्योंकि अभी उसका भोग करने से हमें हानि पहुंचेगी. तो जैसे कुछ मानो गुलाब जामुन है हमारे लिए, ठीक है, 1 खाया, 2 खाया, 3 खाए, और कई लोग तो बहुत खा सकते हैं, लेकिन फिर एक समय आता है कि लिमिट, शरीर की लिमिट हो जाती है, एक सीमा होती है शरीर की सहन करने की, पचाने की. उसके बाद भी हम खाएंगे तो हमारे लिए हानिकारक है. तो ये तो सिर्फ एक उदाहरण है उपलक्षण के रूप में, लेकिन ये सभी जगह लागू पड़ता है. तो ये व्हाट मतलब क्या है? तो सेल्फ कंट्रोल मतलब स्वयं पे नियंत्रण, स्वयं की इंद्रियों पे नियंत्रण, मन पे नियंत्रण के सामने ही है भोग के लिए वस्तु, लेकिन फिर भी उसका उपभोग ना करना, ये अनुशासन है. मन तो करता है, कई लोग कहते हैं कि मेरा मन ऐसा करता है, तो मन तो कुछ भी कह सकता है कि मुझे ये करना है, वो करना है, लेकिन क्या वो आपके लिए अच्छा है या नहीं, वो बुद्धि निर्णय करती है. तो बुद्धि को तीक्ष्ण बनाना, बुद्धि को तीव्र बनाना, बुद्धि की क्षमता को बढ़ाना, यही शिक्षण का कार्य है ना. नहीं तो और क्या है? अगर मन के हिसाब से हम चले गए और इंद्रिय के हिसाब से चले गए तो हम बच्चों को पॉटी ट्रेनिंग ही क्यों देते हैं? मन तो कहता है कि कहीं भी पॉटी करो या कुछ से मिट्टी को खा जाओ, लेकिन हमें ट्रेनिंग देनी पड़ती है. तो ट्रेनिंग क्यों होती है? ताकि हम
एक सही मार्ग पे चले जो हमारे लिए अच्छा है, ना कि केवल अच्छा महसूस होता है उसको करने से। ये क्यों करना चाहिए? वाई मतलब क्यों? अनुशासन की क्या आवश्यकता है? मानो अनुशासन हो ही नहीं, कोई नियम हो ही नहीं रास्ते पे, तो क्या होगा? एक्सीडेंट। ट्रैफिक तो पहले होगा, उसके बाद एक्सीडेंट ही होगा। और ऐसा होता भी है ना, नियम है तो भी कोई उसका पालन करता नहीं है, तो इसीलिए ऐसी अकस्मात घटनाएं घटती है। तो क्यों हमारे जीवन में कोई एक्सीडेंट ना हो, हमारा जीवन एक सद्मार्ग में चले, इसके लिए अनुशासन अति आवश्यक है। यहाँ हमने लिखा है सक्सेस मतलब सफलता। सफलता अगर पानी हो जीवन में तो अनुशासन के बिना संभव नहीं है। और सफलता मानी क्या? सिर्फ आर्थिक रूप से सफलता या भौतिक रूप से सफलता या पूर्ण विकास के रूप से सफलता? तो इसकी भी हम व्याख्या देखते हैं, जो पहले हमने देखी भी थी पिछले कार्यशाला में। तो ये माना आप जो भी करो, व्यवसाय करो, धंधा करो, जॉब करो, किसी भी प्रकार का, उसमें आप आगे बढ़ सको, प्रमोशन मिलता जाए आपको, मतलब आप उस कार्य का अच्छे हो और आपकी मांग हो, समाज को आपकी मांग हो, उस जो भी आप प्रोडक्ट बनाते हो उसकी मांग हो, तो उसमें अगर अच्छा बनना है तो अनुशासन तो होना ही चाहिए जीवन में। दूसरा है रिलेशनशिप, आपके संबंध। मानो आपके इंद्रियों पे कोई नियंत्रण है नहीं, आप कुछ भी बोल रहे हो, सोच की तो बात ही अलग है कि सोच तो दिखती नहीं है, लेकिन शब्द बोलते हो तो सुनाई देता है, कुछ कार्य करते हो दिखाई देता है, उसका प्रभाव तुरंत पड़ता है, विचार का भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन वो सूक्ष्म रूप में पड़ता है। लेकिन कार्य और आपकी वाणी अगर इस पे आपके नियंत्रण ना हो तो क्या आपके संबंध अच्छे रहेंगे? क्या आप मिलनसार होंगे? नहीं। क्या आपके संबंध में प्रेम और दया, करुणा, सम्मान ये सब रहेगा? नहीं। आप अगर जैसा मुझे अभी लगता है बोलना वैसा ही मैं बोलने लगूं तो ये तो अहंकार का प्रतीक हो जाएगा। फिर आप अहंकार से कुछ भी कभी भी किसी को भी बोलोगे तो इससे संबंध आपके टूटेंगे। कल ही हमने बच्चों को भी सिखाया कि कैसे राम सेतु बनाना है, क्योंकि दिवाली आ रही है ना, तो राम सेतु क्या है? संबंध हमें बनाने हैं लोगों से, ना कि तोड़ने हैं। और तीसरा है हमारा स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य के दो पहलू है, एक फिजिकल मतलब अगर आप जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया, आप खाते ही जा रहे हो या कुछ भी खा रहे हो, कभी भी खा रहे हो, रात को 1 बजे 2 बजे खा रहे हो, ऐसा आप करते जाओगे तो ज्यादा आप स्वस्थ नहीं रह पाओगे। लेकिन एक होता है, ये तो शारीरिक स्वास्थ्य हो गया, दूसरा होता है मानसिक स्वास्थ्य, कि मानसिक रूप से आपके विचार कैसे हैं, आप में कितना क्रोध है, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब कितना है। अगर आपका मन इन्हीं नकारात्मक भावनाओं से भरा है तो आप अंदर से पीड़ित रहोगे। तो भले आपका शरीर स्वस्थ हो दिखने में, लेकिन आपका मन अस्वस्थ है। आप हमेशा ना केवल चंचल लेकिन पीड़ित रहोगे अंदर से। दुख जो है ना, एक तो शारीरिक दुख होता है, एक मानसिक दुख होता है, और दोनों में से कौन सा ज्यादा भयानक है? सब बोल रहे हैं ना, मैं तो नहीं बोला। तो शारीरिक का तो हम वैद्य के पास जा सकते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो गोली दे सकते हैं, कुछ बहुत पीड़ाजनक हो तो ऑपरेशन भी कर सकते हैं, सर्जरी हो सकती है। लेकिन मानसिक के लिए क्या करोगे? हाँ, हमारे पास साइकोलॉजिस्ट है, साइकेट्रिस्ट है, वो सब है, लेकिन फिर भी काम किसको करना पड़ेगा? आपको खुद को ही करना पड़ेगा। आपके मन में तो कोई घुस कर ऑपरेशन कर नहीं सकता है, ठीक है ना? खुद को ही आपको अंदर देख के उस पर काम करना पड़ेगा। तो क्यों हम, जो जीवन वैसे ही कष्टपूर्ण है, जीवन का पर्यायवाची ही है दुख। बुद्ध भगवान ने 2500 साल पहले ही कह दिया था कि जीवन का सत्य क्या है? दुख। तो दुखमय तो है ही, तो उसको और दुखमय क्यों बनाया है? अनुशासन नहीं होता है तो ये दुख बढ़ जाता है, उसकी मात्रा कई अधिक हो जाती है। और जैसे आपने कहा, मानसिक पीड़ा जो होती है, मानसिक दुख जो होता है, वो शारीरिक दुख से कई गुना अधिक पीड़ाजनक होता है। तो इससे मन जब ऐसे ग्रस्त हो जाता है इन नकारात्मक भावनाओं से, तो व्यक्ति अंदर ही अंदर घुटता रहता है। और वो घुटन ऐसी होती है कि एक मानसिक बीमारियां भी होती है, जैसे डिप्रेशन, ग्लानि,
है ना, और उसको आप ज्यादा आगे ले जाओगे तो आत्महत्या के विचार भी आने लगते हैं। जीवन से जो प्रेम होता है वो चला जाता है। और ऐसे वेद में, हमारे वेद में ऐसे कई मंत्र है जो इस बात की ओर संकेत करते हैं। इसको तमस कहा जाता है। तमस मतलब अंधकार, घोर अंधकार। और कहा है कि जो ऐसे मार्ग पे है जो खुद की महानता नहीं जानते हैं, मनुष्य जीवन की महानता नहीं जानते हैं, उसकी विशेषता नहीं जानते हैं, मनुष्य जीवन को सार्थक नहीं कर सकते, वो प्रतिक्षण एक प्रकार की आत्महत्या ही कर रहे हैं, ऐसा कहा गया है। तो हमें बच्चों को कैसा बनाना है ना, हम हर एक हमारा जो इंटरेक्शन होता है, प्रत्येक एक संवाद होता है बच्चे के साथ, वो इसका निर्णय करेगा कि बच्चे का मन कैसा होगा, बच्चे की जीवन की दिशा कैसी होगी। तो इसीलिए निरंतर तो हमें सिखाना ही है, लेकिन कैसे सिखाना है। एक महात्मा गांधी जी कहते थे कि एक होता है साध्य, मतलब जो हमें प्राप्त करना है, एक होता है साधन, है ना, जिसके द्वारा प्राप्त करना है। तो साध्य तो उस समय सबका क्या था, स्वतंत्रता। लेकिन साधन क्या है आपका, तो साधन शुद्धि की ओर उन्होंने बहुत ध्यान दिया, महत्ता दी साधन शुद्धि की ओर। कि जैसे हमारा साध्य क्या है कि हमें अनुशासन सिखाना है, या बच्चे को स्वयं को अपना अनुशासन पर ऐसा बनाना है कि हमें कुछ कहना ना पड़े। लेकिन साधन शुद्धि भी तो होनी चाहिए, किस मार्ग से हम जा रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं। अगर हम मार पीट के चिल्ला के बच्चे को समझाएंगे या डरा धमका के समझाएंगे, तो बच्चा अभी समझ भी गया, लेकिन उसकी दिशा क्या होगी, उसका मानसिक जो बल है उस पर क्या बीतेगी। तो इन सब बातों पर भी हमें विचार करना आवश्यक है। एक है मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट में डॉक्टर याकी जी से विनती करता हूँ कि ये एक्सपेरिमेंट हमको समझाए। बहुत रोचक एक एक्सपेरिमेंट, मतलब एक प्रयोग किया था यूएस में, एक यूनिवर्सिटी में, और इससे काफी साइकोलॉजी, मतलब मनोविज्ञान ने इसका बहुत अध्ययन किया है कि ये निरंतर अनुशासन क्यों आवश्यक है, वो हमें जीवन में क्या प्राप्त करवा सकता है। तो ये है मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट। मार्शमैलो जैसे बताया एक मिठाई है, पाश्चात्य मिठाई, तो वो बच्चे के सामने रखी है, वीडियो देख सकते हैं। तो इन्होंने 1970 में ये एक्सपेरिमेंट किया था यूएस में, कि बच्चों को उन्होंने एक एक करके बच्चे को बुलाया। बच्चों की उम्र थी तो 4 साल के बच्चे थे, और उनको ऐसे एक मार्शमैलो दिया, उनके सामने रखा और कहा कि ये लो, ये मार्शमैलो है आपके पास, आप चाहो तो इसे खा सकते हो, और अगर आप इसे नहीं खाओगे तो जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने कहा आप इसको रखो, अपने पास रख के बैठना, मैं बाहर जाके आऊंगा 15 मिनट में, और तब तक अगर आपने इसे नहीं खाया तो आपको 2 मार्शमैलो मिलेंगे। ठीक है, अभी एक चॉकलेट है मान लो, और 15 मिनट तक आपने अगर चॉकलेट नहीं खाई तो जब मैं आऊंगा तो एक और चॉकलेट दूंगा। तो इसमें फायदा किसमें है कि हम 15 मिनट प्रतीक्षा करें तो दूसरी भी मिलेगी। तो ये आत्म संयम की बात है, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण की बात है। तो आप सोचिए कि बच्चा 4 साल का है, आप देख सकते हैं, मुझे साथ साथ सुनते जाएंगे, तो आप देखिए अलग अलग बच्चों की प्रतिक्रिया कैसी थी। उसको समझा रही है कि 15 मिनट तक अगर आप इसे अपने सामने ही रखोगे तो 2 मिलेंगे। तो अलग अलग बच्चों की प्रतिक्रिया अलग होती है। कोई तो तुरंत, अभी साइकोलॉजिस्ट दरवाजे से बाहर भी नहीं गया और वो घबक जाते हैं, और कुछ होते हैं जो उसे देखते हैं, बहुत कोशिश, देखो अब आंख बंद करता है, सूंघता है उसको, मतलब बहुत प्रयास। सोचो कि 4 साल का बच्चा है तो वो ऐसे दिखता है। कोई तो भी आप देखोगे अपनी आंख बंद करते हैं, कोई अपने हाथों से ऐसे कुछ गेम बना के खेलते हैं, कोई गाना गाते हैं कि अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। क्योंकि देखो सबकी इंद्रियां तो सबकी हैं, और जैसा भगवद गीता में कहा है कि वो इंद्रियां जो है ना, वो घोड़ों जैसे, रथ का उदाहरण दिया है, और वो घास की तरफ स्वाभाविक रूप से खींची जाती है। लेकिन वो जो लगाम है वो है मन, और उसे लगाम को पकड़ता कौन है? सारथी। वो सारथी है बुद्धि। अभी हमें बुद्धि का उपयोग करना है, क्योंकि इंद्रियां तो बाह्य गोचर है, बाहर जा रही है।
लेकिन बुद्धि को उन्हें लगाम की, मन की लगाम से पकड़कर अंदर रखना है। तो आप देखिए, अभी कोई उसको थोड़ा सूंघता है, कोई चाटता भी है, आप सोचो कितना नियंत्रण चाहिए ये करने में। देखो नाच रहे हैं, गाना गा रहे हैं, आंख बंद कर रहे हैं, मतलब उससे प्रयास कर रहे हैं। तो ये हम सबके साथ ये परिस्थिति नित्य होती है ना। हमें भी कभी डायबिटीज है, खाने को मिलता है, हम अभी दिवाली आएगी तो सब प्रकार के व्यंजन होंगे, आपको पता है आपके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन उस समय का क्षणिक भोग जिसे हमारे शास्त्र प्रेयस कहते हैं, और दीर्घकालीन जो श्रेयस है, जो श्रेयकर है, जहां हमें फायदा होगा और ये हमें अच्छा लगेगा, दोनों में भेद है। क्या अच्छा लग रहा है और क्या आपके लिए वास्तविक अच्छा है। तो ऐसा हम जैसे बात की कि स्वास्थ्य में भी है, हमारे कार्य में भी है। अभी आप एक्सरसाइज करते हैं तो जिम में अभी 5 मिनट में बस हो गया, आज इतना ही, लेकिन आपको पता है कि अगर मैं पूरा 1 घंटा करूंगा तो आगे जाकर लंबा जो है मुझे इसमें फायदा होगा। अभी क्षणिक सुख इसमें है कि मैं 5 मिनट में बंद कर दूं या करो ही नहीं, लेकिन बाद में जब मैं वृद्ध हो जाऊं और तब अगर मुझे स्वास्थ्य चाहिए तो मुझे करना पड़ेगा। तो अभी का कष्ट है लेकिन बाद में उसका लाभ है। तो वैसे ही ये बच्चों के लिए है कि अभी क्षणिक या तो मैं 1 मार्शमेलो खा लूं या 15 मिनट अपने ऊपर नियंत्रण रखूं तो मुझे 2 मिलेंगे। तो इसे उन्होंने कहा कि ये है लॉ ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन, कि डिलेड मतलब समय लगता है और फिर ग्रेटिफिकेशन जो खुशी मिलती है वो कुछ समय के बाद मिलेगी। तो ऐसा उन्होंने ऐसे बच्चों को, उन्होंने बहुत सारे बच्चे लिए और फिर उन्होंने उनको फॉलो अप किया 15 साल के बाद, यानी कि जो 4 साल के बच्चे थे वो 19-20 साल के हो गए थे। तो तब उन्होंने उनकी सब डेटा रखा था, तो उनको कांटेक्ट किया, उनके पेरेंट्स को कांटेक्ट किया, उनके सैट स्कोर, जैसे हमारे यहाँ नीट एग्जाम होता है वैसे अमेरिका में सैट एग्जाम होता है, तो उसके स्कोर्स देखे। तो वो बच्चे जो 4 साल की उम्र में नियंत्रण कर सकते थे अपने ऊपर, वो छोटा सा मार्शमेलो को 15 मिनट वो रुक सकते थे, यानी कि उनमें आत्मनियंत्रण था। तो 15 साल बाद वही बच्चे, क्योंकि उनमें नियंत्रण रहा, वो डिसिप्लिन रहे, तो उनके सैट स्कोर्स भी ज्यादा थे, अंक ज्यादा थे उनके एग्जाम्स में, उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स अच्छे थे, और सब्सटेंस अब्यूज मतलब दारू या ऐसा कुछ व्यसन उनमें काफी कम था। अगर हम तुलना करें ऐसे बच्चों से जो जिनकी उनको हर क्षेत्र में उनके पास आत्मनियंत्रण था और उनका पेरेंट्स के साथ भी ज्यादा अच्छा संबंध था। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि आत्मनियंत्रण एक छोटे से उम्र में भी शुरू हो जाता है, और किस प्रकार हम ट्रेन करें। और आगे ये जब उन्होंने पब्लिश किया तो और कई साइकोलॉजिस्ट ने इस पर और रिसर्च की, फिर देखा कि कैसा कैसा वातावरण, कुछ तो प्रकृति से ही, जन्म से ही थोड़े आत्मनियंत्रित होते, और कुछ वातावरण भी इसमें मतलब करता है, तो उसका रोल होता है। तो उन्होंने देखा, अलग अलग वातावरण दिया कि जब जो उनके पेरेंट्स थे, अभिभावक थे, उनको कंसिस्टेंटली वैसा, यानी कि जो प्रॉमिस करते थे वैसा ही करते थे, तो बच्चे का जो ब्रेन है वो डेवलप हो रहा है, तो वो ऐसा रिवायर हो जाता था, ऐसा प्रोग्राम होता था कि हाँ उसके अंदर एक ट्रस्ट होता था, एक विश्वास होता था कि मुझे दूसरा मार्शमेलो मिलेगा। नहीं तो कई बार अगर ऐसा हुआ कि प्रॉमिस किया कि 15 मिनट के बाद आपको दूसरा मार्शमेलो मिलेगा और फिर नहीं दिया, तो उसको एक विश्वासघात हो जाता था। तो ऐसे उन्होंने बहुत उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए कि किस प्रकार वो वातावरण हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट में, हमारे ट्रस्ट बिल्डिंग में, विश्वास में, कि फिर जो बच्चा घर में देखता है वही वो पूरी दुनिया पर एक्सट्रापोलेट करता है, कि वही सोचता है कि ऐसा ही बाहर भी होता है। तो अगर घर पे वो विश्वास कर सकता है अपने माता पिता पर, उसको एक संबंध उसका घनिष्ठ है, तो वो दूसरे पर भी बाहर जाकर विश्वास कर पाएगा और उसके संबंध अच्छे हो पाएंगे। तो ये था मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट। तो इससे हमें पता चलता है कि बचपन से ही डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। अब वो कैसे करना है वो हमें देखना है। फ्रस्ट्रेशन होती है ना, डिसिप्लिन कब करना पड़ता है, सब अच्छा चल रहा है तो डिसिप्लिन, मतलब हम सोचते ही नहीं डिसिप्लिन के बारे में। तो जब ट्रिगर कुछ ना कुछ होता है कि हम जो चाहते हैं बच्चा करे लेकिन वो नहीं कर रहा है, तब वो पॉइंट आता है, तब फ्रस्ट्रेशन होती है। मतलब 2-3 महीने का बच्चा क्या कर रहा है, तो क्या सभी को पता है ना, क्यों? भूख लगी है, उसको दूध पीना है
है ना, सिंपल, ये फिजियोलॉजिकल कारण है, ठीक है। या उसके पेट में गैस हो रही है ना, फिर आप उसको पेट में हींग लगाओगे, ऐसे कंधे पे रखोगे, थोड़ा पेट दबाओगे तो ठीक हो जाएगा। तो ये फिजियोलॉजिकल कारण है जो हमारे शरीर में आप खुद भी अनुभव करते होंगे। कभी अगर आपको गैस हो रही है या आपको भूख लगी है, खासकर अगर आपकी पित्त प्रकृति है, अभी खाना टाइम पे नहीं मिला तो वो जो अंदर की अग्नि है वो दिमाग में भी अग्नि करती है और आपको गुस्सा आता है। तो आपको बाद में लगता भी है कि क्यों मैंने घर में किसी को ऐसा बोल दिया, लेकिन भूख के कारण। तो ऐसे कई हमें ये सब बच्चा जो है व्यक्त नहीं कर पाता हर बार शब्दों में, अलग अलग आयु अनुसार उसकी जरूरतें अलग अलग होती हैं और उसकी व्यक्त करने की क्षमता भी अलग होती है। तो छोटा बच्चा, उसको भूख लगी है तो वो व्यक्त नहीं कर पा रहा, प्यास कई बार पूरे दिन भर खेल रहा है, पानी नहीं पिया, तो उसके सिर में दर्द हो रहा है या वो इरिटेबल है, तो वो कारण है। और हम उसको डिसिप्लिन मतलब डांट रहे कि चुप करके बैठ ऐसा, तो वो हमें समझना पड़ेगा कि ऐसे कई, जैसे भूख है, नींद आ रही है, ये सब कारण भी हो सकते हैं। सहमत है कि नहीं? तो यहाँ पहले विष और फिर अमृत, ठीक है। अभी सामने जो है गुलाब जामुन जो भी है ये प्रतीक के रूप में, ठीक है। तो और दूसरा है कि पहले अमृत जैसा उसका स्वाद है और बाद में होता है विष। तो सामने कुछ भी हो सकता है, बच्चा बड़ा होगा तो दारू है, सिगरेट है, ड्रग्स है, ये सब भी यही है, आकर्षित करते हैं। तो इन दोनों में से कौन सी परिभाषा अनुशासन की परिभाषा कोई बता सकता है, पहली वाली या दूसरी? पहली वाली। पहले विष जैसा लगता है, तो अपने आप पे नियंत्रण करना विष जैसा क्यों लगता है? क्योंकि हमेशा बहिर्मुखी होती है, तो इसलिए उसको ऐसे कछुए की भांति नियंत्रण उस पे नियंत्रण करना पहले कठिन लगता है, वो भी बाद में सहज हो जाता है अभ्यास के द्वारा, वैराग्य के द्वारा। लेकिन फिर जाके अभी बच्चा उस पर नियंत्रण कर सकेगा तो फिर वो ध्यान कहाँ दे पाएगा? पढ़ाई पे, है ना। और पढ़ाई सिर्फ पुस्तक की पढ़ाई नहीं, लेकिन उसका ध्यान अच्छा हो जाएगा, उसका ध्यान एक दक्ष हो जाएगा, वो सब जगह देख सकेगा, किसी से भी कुछ भी सीख पाएगा, क्योंकि उसकी बुद्धि ऐसी बन जाएगी। आगे जाके उसको उसका फल मिलेगा थोड़े साल बाद। ड्रग्स लेना, कितने जो टीनेजर्स होते हैं वो कितने भटके हुए हैं, उनको इसमें फिर मजा आने लगता है कि अभी क्षणिक मजा लो, और बाद में फिर उनके सेहत पे भी असर होता है, मानसिक सेहत पे असर होता है, ना कुछ जीवन में कर पाते हैं, और अंत में जाके मनुष्य जीवन असफल रह जाता है। तो ये दुखद घटना है। तो इसीलिए हमें ये सिखाना है। अब हम सीखेंगे कैसे सिखाना है उसके। राखी मैम ने जैसे बताया कि बच्चा जब 3 महीने का 2 महीने का जब जन्म लेता है तब जो रोता है तो वो नींद, भूख या तो फिर कुछ उसको पेट में दर्द कर रहा है ऐसा कुछ। अब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब भी नींद भूख होती है, रहती है, पर वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे। और उसके अलावा उनकी इच्छाएं बढ़ने लगती है क्योंकि उनको अभी एक्सपोजर मिल गया है। उन्होंने टॉयज देख लिए हैं, दुकान में चॉकलेट्स देख लिए हैं, तो अभी उनकी इच्छाएं बढ़ती जा रही है। तो एक हो गया वो इच्छा, डिजायर जिसको बोलते हैं, वस्तुओं के लिए। और दूसरा एक होता है इच्छा या डिजायर फॉर अटेंशन। उसको कोई अपना चाहिए साथ, उसको कोई चाहिए कि कोई उसके साथ कुछ करे, उसको सपोर्ट करे, उसका ध्यान दे, उसको मदद करे। सो अ कॉन्स्टेंट डिजायर, इच्छा फॉर अटेंशन। और जैसे बड़े होते हैं तो हम सोचने लगते हैं कि ये काम तो अभी वो खुद कर सकता है, बड़ा हो गया है, हम भी बिजी हो जाते हैं, हम सोचने लगते हैं अब तो 3 साल का है तो ये अपने आप करेगा, 4 साल का है तो अभी ये भी अपने आप करेगा। तो वो धीरे धीरे हम एज पेरेंट्स भी थोड़ा डिस्टेंस हमारा बढ़ने लगता है। पहले पूरा समय हाथ में रखते हैं, अभी धीरे धीरे तो वो भी उसको मुश्किल होता है बच्चों को अडेप्ट करने के लिए। और हर बच्चों को अलग अलग लेवल पे डेवलपमेंटल स्टेज अलग अलग होता है उनका, तो ये डिजायर भी, इच्छाएं उनकी होती है। और दूसरा है फियर। डर भी, जब वो बच्चे जब बॉर्न होते हैं तो उनको किसी चीज का भय वैसे होता नहीं है, और होता है तो वो जब चलना सीखते हैं और वो खुद अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, पर वैसे और कोई भय होता नहीं है। वो भी एनवायरनमेंट से भय आता है, देख के भय सीखते हैं कि सोफे पे चढ़ गया तो तुरंत पेरेंट्स बोलते लग जाएंगे,
तो भाई वहाँ से वो एक्सप्रेशन हमारा जो देखता है बच्चा, वहाँ से अभी भाई उसको समझ आता है कि फियर ये चीज़ है। और ये तो हुआ चाकू से, सिजर से गिरने, ये वाला फियर कि लग जाएगी, अंधेरे से फियर, पानी से फियर, ये सब। बट एक दूसरे फियर्स भी होते हैं, जैसे लोनलीनेस, अकेलापन, या तो समाज में किसी से मिलजुल के बातें करना। कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं बातें करना चाहते हैं। दूसरा होता है सेपरेशन फ्रॉम पेरेंट्स। ज़्यादातर बच्चे जब फर्स्ट टाइम स्कूल आते हैं तो सेपरेशन होता है, एंग्जाइटी होती है मम्मी से दूर होने की, पापा से दूर होने की, तो उस प्रोसेस में भी उनको समय लगता है। तो सेपरेशन फ्रॉम पेरेंट्स हुआ, फियर ऑफ फेलियर, जैसे धीरे धीरे बड़े स्टैंडर्ड में गया, कहीं बोलना पड़ रहा है, जवाब देना पड़ रहा है, क्वेश्चन पूछते हैं कोई, तो फियर ऑफ फेलियर भी होता है उन्हें। तो ये साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स हैं जो हमें पता भी होते हैं पर दिखाई नहीं देते। ऑब्वियसली वो दिखाई देते हैं रोने के फॉर्म में, जिद के फॉर्म में, और ये सब पीछे रह जाता है। दिस इज द बैक स्टोरी जो हमें कोशिश करनी है हमेशा आइडेंटिफाई करने की। कोई प्रश्न हो तो पूछिए। ये सब सिर्फ बच्चों में नहीं होते, बड़ों में भी होते हैं, क्योंकि और जिसने अपने आप पे थोड़ा काम किया हो अपने मन पे, उसको पता होता है कि ये सब में होते हैं। सवाल ये है कि हम इसको कैसे मैनेज करते हैं ना। फिर ये ट्रिगर्स ऑफ द पेरेंट, मतलब मम्मी पापा के क्या ट्रिगर्स है ना। एक होते हैं कि बच्चे के ट्रिगर्स, कि बच्चे को भूख लगी है, प्यास लगी है, नींद आ रही है, या तो ये सब जो बता खेलने की इच्छा है, या अटेंशन, यानी मेरे से कोई बात करे, मेरे पे कोई ध्यान दे, ये सब इच्छा है, भय। लेकिन माँ बाप के क्या ट्रिगर्स होते हैं? तो एक होता है कि हम नेगेटिव डिसीजन, माने जो चिल्लाना, चीखना, मारना, पीटना, डराना, धमकाना, ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास एक पहला टाइम नहीं होता, लैक ऑफ टाइम, समय ही नहीं है। इतनी सारी चीजें करने की है हमारे शेड्यूल में कि हमारे पास समय नहीं है कि हम बैठ के बच्चे के साथ बात कर सके या समझ सके कि उसके ट्रिगर्स क्या है। तो सीधा एक शॉर्टकट क्या है कि उसको एक बड़ी आंख दिखा दो, या हाथ दिखा दो, या कुछ ऐसा कह दो कि भूत आएगा, सो जा, ऐसा कुछ कह दिया तो तुरंत उसका सोल्यूशन आ गया। तो ये भी शॉर्ट टर्म हुआ। तो ये जो सेम हमने बात की ना कि शॉर्ट टर्म में अच्छा है, लॉन्ग टर्म में हम आगे जाके देखेंगे इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है मन पे। दूसरा लिखा है लैक ऑफ प्रायोरिटीज। समय क्यों नहीं है? क्योंकि जो बाकी की चीजें उस पर हम ज्यादा ध्यान देते हैं, ये मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? ये मिनी सीरीज जो है टीवी पे अभी चल रही है उसको पूरा करना, या तो फिर नवरात्रि है तो गरबा में जाना। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रात को 11 बज गए लेकिन फिर भी ये मूवी देखनी है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे को सुला देना है, होमवर्क खत्म कर दो, उसके साथ बैठ के होमवर्क नहीं करना है, लेकिन उसको बोला है खत्म कर दो ताकि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ फोन पे बातें कर सकूं या जो भी चैट कर सकूं। तो हमारी प्रायोरिटीज क्या है ये हमें देखनी पड़ेगी। क्या सही है क्या गलत है ये हम यहाँ से कह नहीं सकते, ये आपको ही देखना पड़ेगा, पेपर पेन लेके लिखना पड़ेगा कि हमारी प्रायोरिटीज क्या है। कि बच्चा रो रहा है, उसको मनाना, उसको समझना, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, या फिर मेरा जो सोशल मीडिया पे अकाउंट है उसमें ज्यादा लाइक्स है, ये इंपॉर्टेंट है कि ये फोटो अपलोड होना ही चाहिए, ये मिनी सीरीज खत्म होनी ही चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे मन में कभी कभी स्पष्टता नहीं होती है, और ये सिर्फ बच्चों के साथ नहीं होता है, हमारे जीवन में ही यही होता है कि जीवन में मन में स्पष्टता होती ही नहीं है कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। तो छोटी छोटी बातों पे हम बड़ा बड़ा झगड़ा करते हैं, और जो बड़ी बात होती है उस पर कभी चर्चा करते ही नहीं। ऐसा होता है कि नहीं? जो एक्चुअल इशू होते हैं समाज में हो, देश में हो, या हमारे घर में हो, उस पर कोई बात करता ही नहीं है। उस पर होनी चाहिए बात। और जो इशू है ही नहीं कि ऐसे बर्तन नहीं धोने के, ऐसे धोने के, उस पर झगड़ा हो जाएगा। तो लेकिन जो अंदर चल रहा है, सबको पता है कि मन में किसके साथ बनती है, किसके साथ नहीं बनती है, क्यों नहीं बनती, सबको सब कुछ पता है, लेकिन उसमें बात कभी होती ही नहीं है क्योंकि हमारी प्रायोरिटी स्ट्रेट नहीं है। तीसरा पॉइंट ये है कि नॉलेज यानी ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग में समझ नहीं है किन चीजों की। एक तो बच्चे की समझ नहीं कि बच्चे का मन कैसे काम करता है, बच्चे की मांग क्या है, बच्चे की पर्सनालिटी मानी व्यक्तित्व उसका कैसा है, ये हमें नहीं पता है कि वो क्या संस्कार लेके आया है, उसके क्या संस्कार, उसकी विशेषता क्या है। दूसरा टेक्निक्स मतलब हमारे पास ऐसे साधन नहीं है। हमें ही शायद यही अनुभव हुआ है, तो हम फिर यही देते हैं आगे कि भाई ऐसे ही अनुशासित
किया जाता है किसी को, जैसे हम कुत्ते को करते हैं, बिल्ली को करते हैं, वैसे ही बच्चे को करते हैं। ये थोड़ा सुनने में कड़वा लगेगा, लेकिन यही है ना, डोमेस्टिकेशन मतलब क्या, उसको ट्रेनिंग देना। लेकिन बच्चा एक मनुष्य है, मनुष्य में बुद्धि होती है जो पशु में नहीं है। उस बुद्धि को हमें ध्यान रखना है कि वो एक फूल की भांति है, कि वो फूल मुरझाना चाहे, उसको विकसित करना है कमल की भांति। तो कैसे करना है ये हमें इसकी टेक्निक्स होती है। तो ऐसे कार्यशाला में हम बताते हैं, शेयर करते हैं कि क्या है ये कुछ टेक्निक्स। अंत में जाके आपको ही अपनी टेक्निक ढूंढनी है। हम तो सिर्फ एक मार्गदर्शन दे सकते हैं, कुछ इशारा कर सकते हैं, कि संकेत दे सकते हैं, संकेत मात्र दे सकते हैं कि ये ऐसा आप ट्राई कर सकते हो, ऐसा प्रयत्न कर सकते हो, ये आप प्रयोग कर सकते हो। लेकिन बच्चा तो आपका ही है, प्रत्येक बच्चा अलग होता है। तो फिर टीचर हो या पेरेंट हो, उनको उस बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करना है, अंत में उनको ही ढूंढना पड़ेगा अपने आप। लेकिन उसके लिए साधन भी तो होने चाहिए, तो इसलिए ये कार्यशालाएं होती है। नेक्स्ट, ये एक नेगेटिव डिसिप्लिन की परिभाषा। दो प्रकार के नेगेटिव डिसिप्लिन होते हैं। पहला तो हमें पता है, फिजिकल माने शारीरिक, मतलब वास्तविक रूप से मारना, उसको थप्पड़ मारना या चप्पल से मारना, पता नहीं कैसे कैसे मारते हैं, डंडे से मारना। और दूसरा होता है जो हमें दिखता नहीं है, वो है वर्बल मानी शाब्दिक प्रहार। तो एक होता है अपने आवाज की वॉल्यूम को बढ़ाना, चिल्लाना, ठीक है। और दूसरा होता है कि अपने ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जो उसके मन पे नकारात्मक असर छोड़े। मान ली मैं उदाहरण रूप से बताता हूं कि होमवर्क भी नहीं किया है तो किसी काम के लायक ही नहीं है, कुछ करेगा ही नहीं जीवन में। तो हमको लगता है कि इससे वो मोटिवेट हो जाएगा। इससे मोटिवेट नहीं होगा, इससे डीमोटिवेट होगा, उसको कुछ प्रेरणा नहीं दे रहा। या तो फिर बोलोगे कि ये अच्छा, ये देखा कितने कम मार्क्स आए, लेकिन ये देखो मेहता आंटी के बच्चे को कितने मार्क्स आ गए, मतलब कोई भी पड़ोस में हो उसके, ठीक है। तो कंपेयर कर, या तो तेरे भाई को कितने आए, तेरी बहन को कितने आए, तुझे इतना भी नहीं आता है। तो इससे क्या होता है कि ये हमें दिखता नहीं है कि कोई आपने थप्पड़ नहीं मारा है, लेकिन एक मन पे उसके थप्पड़ पड़ा है और उसको फिर रुझाने में, लाइक उसको ठीक होने में कई समय, बहुत साल कभी कभी बीत जाते हैं, और कभी हो सकता है कि कभी ना भी हो ठीक। और वर्बल, एक तो आपकी आवाज का वॉल्यूम, दूसरा आपके शब्द के प्रयोग, तीसरा होता है व्यंग। मतलब शब्द तो ठीक है, लेकिन आपका अर्थ उसका कुछ अलग ही है कि तू तो बड़ा ही होशियार है, लेकिन आप बोलना कुछ और चाहते हो, लेकिन बोल कुछ और है। आपको लगता है कि ऐसे आप बोलोगे तो वो हिंसक नहीं है, लेकिन वो भी हिंसा ही है। मतलब ये दोनों प्रकार की हिंसा है। और अगर बच्चे के साथ आप हिंसात्मक व्यवहार करोगे तो बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा? महात्मा गांधी बनेगा? क्या बनेगा? हिंसक ही बनेगा। वो भी यही समाज में फैलाएगा और हमारा पूरा समाज ऐसा ही होगा। रास्ते पे भी जाते हो तो झगड़ते ही रहते हैं ना लोग, एक दूसरे को जानते नहीं तो भी झगड़ते हैं। कुत्ते के साथ भी झगड़ते हैं, ऐसा भी होता है। कुत्ते को पत्थर मारते हैं, क्यों ऐसा करते हैं? इतना क्रोध, इतना तनाव मन में क्यों है? क्योंकि ये सब भरा पड़ा है। तो ये हम ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम भूल गए हैं कि अनुशासन हमें क्यों लाना है, अनुशासन की महत्ता क्या है, उसका प्रयोजन क्या है, यही हम भूल गए। माँ बाप हो, शिक्षक हो, कोई भी हो, शिक्षक क्लास में फ्रस्ट्रेट हो जाता है ना कि इतना मैं पढ़ा रहा हूं, समझ नहीं पा रहा, या तो ध्यान इधर उधर दे रहे हो, तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं टीचर। पेरेंट भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ या मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम ध्यान ही नहीं दे रहे हो, मेरे पास समय ही नहीं है। क्लास में भी आधा घंटा होता है, 40 मिनट होती है, घर पे भी इतना ही होता है, फिर तो हमें टीवी भी देखना है, खाना भी खाना है, बाहर भी जाना है, तो फिर टाइम ही नहीं है। तो फटाफट कंप्लीट करो। तो फ्रस्ट्रेशन जब आ जाता है मन में, तनाव, गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है, तो फिर हम भूल जाते हैं कि इसका प्रयोजन क्या है। और प्रयोजन क्या था कि बच्चे को सार्थक बनाना, सफल बनाना। उससे आ जाता है अहंकार, उसका पूरा शिफ्ट हो जाता है कि अब मैं जो कहूं वो होना चाहिए और तुरंत होना चाहिए, अभी होना चाहिए। तो इसके लिए
जो ईगो है, ईगो माने अहंकार, तो उस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो ये हम एक मॉडल से समझाएंगे। डॉक्टर डैन सीगल हैं, आप इनका यूट्यूब पर देख सकते हैं, बहुत अच्छे इनके लेक्चर्स हैं। तो इन्होंने बहुत रिसर्च की है हमारे मस्तिष्क पर, हमारी भावनाओं पर और हमारे मन पर। तो अभी हम ब्रेन का मॉडल देखेंगे। मेरे पास यहाँ पर मॉडल नहीं है, हम अपने हाथ से ही ब्रेन बनाएंगे। तो ये आपका हाथ है, अंगूठा आप अब कर सकते हैं, साथ में आप अंगूठे को ऐसा करिए और फिर इसको बंद कर दीजिए ढक्कन को। तो ये मेरा ब्रेन है ऐसे, यानी कि ये जो अग्र भाग है, आगे का भाग है, ये मेरे माथे का भाग है, ठीक है। और ये तो ये जो ऊपर का भाग है, आप जैसे डायग्राम में देख सकते हैं, वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है। आपने साइंस पढ़ा होगा तो आपको पता है कि ऊपर जो है वो कॉर्टेक्स है, और ये जो यहाँ पर है ये ब्रेन स्टेम है, ठीक है। यहाँ से ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड यानी कि करोड़रज्जु जो हमारे रीढ़ की हड्डी में पूरे नीचे अंदर जाती है, तो ये वो है ऐसे, और ये आगे का भाग है। तो ये हमारा ब्रेन है। और अगर आप देखें ये जो अंगूठा है, यहाँ तो ब्रेन स्टेम है, तो इस जो नीचे हमारा स्पाइनल कॉर्ड है जो हमारे इसमें जाता है, उससे हम जो जो क्रियाएं उससे होती हैं वो हमारे भान में नहीं होती, यानी कि हम कॉन्शियस नहीं होते हैं। जैसे मैंने कुछ छुआ, गर्म था, तो अपने आप ऐसा हो जाएगा। नींद में होंगी तो भी पैर ऐसा हो जाएगा, क्योंकि वो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है यहाँ तक, ब्रेन स्टेम तक, वो कार्य करता है। और जो ये ऊपर का भाग है वो हमारा कॉन्शियस ब्रेन है, जिससे हम रैशनलाइज करते हैं, सोचते हैं, थिंकिंग है, लॉजिक है, सोचते हैं क्यों, कैसे, क्या। ये जो ऐसा हमारा जो कॉन्शियस ब्रेन है जो सब कार्य करता है, वो ये ऊपर का भाग करता है। और ये जो अंगूठा है उसको बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम, यानी कि जो ये वो भाग है हमारे ब्रेन का जो बहुत प्रिमिटिव यानी कि प्राचीन है, जो कि आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि पहले मछलियां थी, फिर एम्फीबियन जैसे फ्रॉग्स बने, फिर रेप्टाइल्स जैसे अपना छिपकली और सांप ऐसे बने, फिर उसके बाद बर्ड्स बने, फिर मैमल्स बने। मैमल्स मतलब जो प्राणी अपने बच्चों को स्तन से दूध पिलाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा एवोल्यूशन हुआ है, विकास हुआ है। तो ये जो है लिम्बिक सिस्टम, उसको रेप्टिलियन ब्रेन बोलते हैं, यानी कि जो रेप्टाइल्स जो हमारी छिपकली इत्यादि है उनमें होता है। तो वो हमारे अंदर भी है, लेकिन फिर हमारा ये कॉर्टेक्स डेवलप हुआ, ऊपर का भाग, जिससे हम सोच सकते हैं, तर्क कर सकते हैं, क्या सही क्या गलत, क्यों, कैसे, ये सब। तो अभी ये जो है वो हमारी जो भावनाएं हैं, यानी कि जब हमें डर लगता है या कोई भी ऐसा आता है, कोई हमला करने के लिए आता है, तो वो उत्तेजित होता है। जैसे अगर आप जंगल में गए और शेर आया, हमने शायद पहले भी बात की है फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स की, तो या तो अगर वो जानवर आपसे छोटा है तो आप भाग लोगे, लड़ लोगे, और अगर आपसे बड़ा है तो आप भाग लोगे, या बिल्कुल स्तब्ध हो जाओगे, ऐसा फ्रीज हो जाओगे। तो फाइट फ्लाइट फ्रीज, ऐसे 3 हमारे रिस्पॉन्सेज होते हैं। तो वो ये रेप्टिलियन ब्रेन करता है। तो जैसा ही कुछ हमें लगा थ्रेट है, कुछ खतरा है, तो इसकी बत्ती जलती है और वो काम करना शुरू हो जाता है। तो अगर आप देखेंगे छिपकली आपने देखी होगी घर में, तो कैसे ऐसे ऐसे करके भागती है, जरा सा आप दरवाजा खोलते हो ऐसा थोड़ा उसको करते हो ऐसे, तो वो जो ये यहाँ से काम करता है। तो वो हमारे ब्रेन में भी वो भाग है, लेकिन क्योंकि हम मानव हैं तो हमारा ये वाला जो ब्रेन है वो भी डेवलप्ड है। तो ये जहाँ नाखून है उसको प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। आप जो यहाँ बीच के 2 नाखून हैं, अगर आप बंद करेंगे तो ये सब कुछ टच कर रहा है, हमारे ब्रेन स्टेम को भी टच कर रहा है, ये लिम्बिक जो अंगूठा है उसको भी टच कर रहा है। तो ये कहते हैं इसको इंटीग्रेटेड ब्रेन, यानी कि सब मिला हुआ है, इंटीग्रेटेड है। तो जब ऐसा रहता है तो जो ये हमारी जो बुद्धि है, जो हमारा कॉन्शियस ब्रेन है, जिससे हम डिसीजन ले सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, वो भी साथ में काम करता है। तो भावनाएं कुछ भी हो, भय लगे, गुस्सा आए, लेकिन इसने नियंत्रण किया है, तो ये साथ में मिलकर काम करते हैं। तो क्योंकि ऐसी परिस्थितियां, हम जंगल में नहीं रहते, लेकिन घर में भी ऐसी परिस्थितियां आती हैं। कभी कभी वो जो जानवर है, भयानक खतरे वाला जानवर, वो हमारा बच्चा ही होता है। मतलब हम जब जैसा हम रिएक्ट करते हैं, ऐसा ही लगता है, अरे अरे ऐसा चिल्लाते हैं, क्या समझता नहीं तू, ऐसा लगता है जैसे कि कौन भयानक जानवर है हमारे सामने, ऐसी हमारी प्रतिक्रिया होती है। क्यों? क्योंकि उस समय ये जो हमारा ढक्कन है ना, डब्बे का ढक्कन उड़ गया, यानी कि जो वो लिड है ब्रेन, वो उसका वो निकल गया, यानी कि ये जो कॉर्टेक्स है
वो साथ में काम नहीं कर रहा है। तो क्या काम कर रहा है? ये जो प्रिमिटिव, बहुत प्राचीन हमारा रेप्टिलियन ब्रेन है, छिपकली वाला, वो ही काम कर रहा है। फिर हम भी छिपकली जैसे हो जाते हैं। तो इसको साथ में मिला के रखना ये बहुत जरूरी है। और इसके लिए हमें पहले तो खुद ही, क्योंकि बच्चे को अनुशासित करने से पहले हमें खुद को अनुशासित करना होगा। तो जब हम अपना ढक्कन बंद करके इसको सब मिलाकर रख पाएंगे, तभी हम बच्चे से ये अपेक्षा रख सकते हैं कि वो भी ऐसा करेगा। क्योंकि बच्चा भी नीचे जमीन पर लेट गया, हाथ पैर मार रहा है और चिल्ला रहा है, और हम भी उसके जैसे चिल्ला रहे हैं। तो पहले तो बच्चे का थोड़ा शुरू होता है ऐसा चिल्लाना और कुछ जिद करना, फिर हम चिल्लाना शुरू करते हैं, हम छिपकली के जैसा बिहेव करते हैं। तो बच्चा वो देखकर और फ्लाइट मोड में आ जाता है, क्योंकि अब उसको खतरा लगता है। जैसे हमको खतरा लगा वैसे अब उसको खतरा लग रहा है, क्योंकि अभी उसके सामने कोई खूंखार जानवर है जो चिल्ला रहा है और अटैक मोड में है। तो वो भी ऐसे फाइट या फ्लाइट मोड में हो जाता है। अलग अलग प्रकृति होती है तो अलग मोड में बच्चा जाता है। तो इसलिए हमें उसको रोकना है, तो पहले हमें खुद अभ्यास करना पड़ेगा कि इसको हम इंटीग्रेट करके रख सकें। नेगेटिव डिसिप्लिन सर ने समझाया, उसके बीच बीच में हमने कुछ इम्पैक्ट देख लिए, पर हम एक सिंपल वर्जन में देखें कि लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट हो सकता है नेगेटिव डिसिप्लिन का बच्चों में। ये इन्फॉर्मेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आपकी वो नॉलेज बढ़ा रहा है। जो सर ने बताया कि हमें लैक ऑफ नॉलेज है, हम सोचते हैं कि सालों से लोग डांटते आ रहे हैं, सालों से लोग डिसिप्लिन अलग तरीके से करते आ रहे हैं और हम तो ठीक ठाक हो ही गए हैं, मतलब हमें क्या तकलीफ हुई। पर जनरेशन अलग है, टाइम अलग है, एक्सपोजर अलग है, तो हमें ये सब भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और इम्पैक्ट लेवल भी एक्सट्रीम हो रहे हैं अभी। तो कुछ इम्पैक्ट्स देखेंगे। उसको साइकोलॉजी में 5 R's, R फॉर रैबिट, R बुलाते हैं। पहला है रिवेंज। रिवेंज मतलब बदले की भावना, और ये छोटे बच्चों में कम होती है। थोड़े बड़े जब हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट टीनेजर्स हो जाते हैं, तभी ये भावना ज़्यादा दिखाई देती है कि अच्छा मम्मी पापा ने ऐसे बर्ताव किया था मेरे साथ, मैं भी उनको दिखा दूंगा, मैं भी कुछ लाइक हर्ट की भावना कि मैं भी उनको अभी हर्ट करूंगा। तो वो एक डिसरिस्पेक्ट हो जाता है, एंगर जहां से भी आ रहा है, पर वो रिवेंज की भावना पैदा होती है। दूसरा है रिजेंटमेंट। वो है एक तरह की कड़वाहट एडल्ट पेरेंट्स के प्रति, या तो किसी भी एडल्ट जो बार बार उनको डांटते रहते हैं, उनके कि एक मेरे साथ अन्याय हो रहा है, कोई मुझे समझ नहीं रहा है, मेरी इसमें गलती थी नहीं, क्यों डांट रहे हैं। तो एक उनको अभी उतना रैशनल उनका डेवलप नहीं हुआ है कि जो वो कर रहे हैं वो कितना गलत है, कितना हानिकारक है। हालांकि हम रोज उनको समझाते हैं, पर वो उतना उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ है कि वो खुद के लिए उतना बड़े बड़े डिसीजन, सेल्फ कंट्रोल अभी तक कंप्लीटली डेवलप नहीं हुआ है। तो ये उनको लगता है कि अन्याय हो रहा है, मेरे मम्मी पापा मुझे ही हमेशा समझाते हैं, किसी और को समझाते नहीं है। दूसरा है रिबेलियन, विद्रोही जो बोलते हैं, कि दे थिंक के मेरे पर पूरा मुझे ही कंट्रोल कर रहे हैं। दे थिंक दैट दे नो, उन्हें ज्यादा समझ है और मम्मी पापा समझ नहीं पा रहे। जो इसका ही रिजेंटमेंट का ही सेकेंड फॉर्म के समझ नहीं पा रहे, और अब मैं उनको दिखाऊंगा। तो जो कभी कभी पेरेंट्स हमें, मेरे सेशंस में कभी पेरेंट्स ये बोलते हैं कि मैं जितना बोलूँ ना उतना ही वो उल्टा करता है। तो दिस इज रिबेलियन, कि जितना हमें लगता है 10 बार समझा है तो मतलब इम्प्रूवमेंट होना चाहिए ना, तो उतना ही बिहेवियर खराब होता जाता है। तो दिस इज रिबेलियस नेचर, और वो आता है, हमें ऐसे लगता है कि कहाँ से आ रहा है, हम तो अच्छा ही समझा रहे थे, कहाँ से आ रहा है, but it is coming from negative form of disciplining, which is a very controlling form of discipline. यही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, that area. फोर्थ है रिट्रीट। रिट्रीट मतलब वो थोड़ा सा पीछे सा हट जाता है, थोड़ा विड्रॉल कर देता है, झूठ बोलने लगता है, छुपाने लगता है चीजें। तो उसको लगता है कि इस बार तो मैं पकड़ा गया, पर गलती तो रिपीट होती है बच्चों से, पर नेक्स्ट टाइम वो ओपन अप नहीं करेगा, शेयर नहीं करेगा, डिफरेंट मेथड्स यूज करेगा कि अभी मैं ना ये ऐसे कर लूंगा, मम्मी पापा को पता नहीं चलेगा, चुपके से चॉकलेट खा लूँ तो पता नहीं चलेगा,
धीरे से रात को लेट आऊंगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। तो ये है रिट्रीट, कि सही मतलब सीखे कुछ नहीं पर झूठ बोलना भी सीख गए और छिपाना सीख गए। और फिफ्थ है रिड्यूस्ड सेल्फ एस्टीम, और ये कॉमन है फ्रॉम अ वेरी अर्ली ईयर्स, कि आत्मविश्वास, डर, ये सब डगमगा जाता है उनका। जैसे सर ने एग्जाम्पल दिया कि किसी काम के लायक ही नहीं है, हो ही नहीं पाएगा, फास्ट लिखा ही नहीं जाता है, आपसे कभी फास्ट लिखा ही नहीं जाता है, कभी ये काम होता ही नहीं है, कर ही नहीं पाओगे, मार्क्स कम आएंगे। ये सब जो हम बार बार वर्बल नेगेटिव डिसिप्लिन यूज करते हैं, उससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही कम हो जाता है, डर कभी कभी बैठ जाता है, एंड यू विल सी इन द लॉन्ग रन कि वो लोग दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म एज मच। और तभी पेरेंट्स बोलते हैं कि लायक तो है पर वो प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है, परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो ये चीज जब हम आगे जाके बोलते हैं ना, उसका रूट यहाँ से है कि उसे प्राइमरी ईयर्स में बहुत सारा ऐसा सेल्फ एस्टीम उसका लो हो गया था बच्चों का। मतलब बच्चा अंदर से टूट जाता है, अंदर जो उसकी कोमलता होती है वो टूट जाती है, उसको फिर वापस कैसे बनाना वो एक बड़ा प्रश्न है। तो हम एक दूसरा जो मार्ग है उसके बारे में आप डिस्कस करके अलग अलग टेक्निक्स, पॉजिटिव सकारात्मक रूप से कैसे बच्चे को अनुशासन में लाना है। तो इट्स लाइक बिल्डिंग अ हाउस, जैसे घर का निर्माण करते हैं, आपने घर बनाया होगा कभी तो उसके लिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहले सबसे नीचे से देखेंगे, एक प्लान चाहिए आपको, है ना। ऐसा नहीं कि आपको घर बनाना है चलो आप गड्ढा खोदना शुरू कर दो और ईंट ले आओ, कुछ नक्शा तो चाहिए ना, प्लान चाहिए। तो हमें भी प्लान करना है कि हम कैसे हमें क्या चाहिए, हमारी एक दूरदृष्टि होनी चाहिए। तो अभी आप अपनी आंखें बंद कीजिए 10 सेकंड के लिए और अपने बच्चे को देखिए जब वो 20 साल का है, आंख बंद, मैच्योर, यानी कि एक उसमें प्रौढ़ता, एक समझ होनी चाहिए और मैच्योरिटी। और हाँ, दूसरों का सम्मान करे, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। और सबने ऐसे भावनात्मक ही बताया है, ये नहीं कहा कि पैसे होने चाहिए उसके पास, करियर अच्छा होना चाहिए, वेल्दी रिच, नहीं, वो नहीं चाहिए आपको। सबको अपने बच्चों को साधु बनाना है। तो बहुत अच्छा है, ये सब होगा तो अब वो अपने आप आ जाएगा, है ना। और अगर केवल पैसा लक्ष्मी होगी लेकिन सरस्वती नहीं होगी तो सुख नहीं होगा। तो हमें ये सब है और बहुत कुछ और भी ये हमें चाहिए। तो अभी हमने देखा कि जब हम छिपकली जैसे हो जाते हैं, है ना, हमारा ढक्कन दिमाग का निकल जाता है, तो हम रेप्टिलियन ब्रेन से काम करते हैं, तब हम चिल्ला रहे हैं अक्ल नहीं, तुझे कितनी बार बोलना पड़ेगा, अरे कुछ भी नहीं तेरे को समझ आता, और फिर 2-4 लगा भी देते हैं। तो तब हम हम्बल हैं नहीं है, ऑनेस्ट हेल्दी है नहीं है, और उसका हम कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं ऐसा करके, तू तो नालायक है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मैच्योर होगा। हम डर से उसको, जैसे अभी पलक मैम ने कहा कि वो फिर विड्रॉ कर जाएगा, फिर आपको कभी शेयर नहीं करेगा। क्या हम नहीं चाहते कि जो वो 20 साल का हो तो हमारे साथ आकर हमें अपना फ्रेंड मानकर हमसे सब शेयर करे, तब वो कुछ गलत राह पर जाने वाला है, बहुत सारे तरीके हैं गलत राह पर जाने के, तब वो हमसे आकर पूछ सके कि माँ या पापा क्या ये सही है। कई बार बच्चों को उस समय पता नहीं होता, वो सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं या पीयर प्रेशर के कारण और लोगों ने उनको कुछ कहा होगा, ऐसा करना, ऐसे करोगे तो अच्छा होगा, तो उनको सच में मालूम नहीं है, तो क्योंकि उन्होंने ऐसा सुना इसलिए वो कर रहे हैं। लेकिन उस समय सही राह दिखाने वाला कोई नहीं है। तब राह दिखाने वाला कौन है? उसका फ्रेंड है जो खुद भी 20 साल का है और जिसे खुद भी कुछ पता नहीं है, ज्ञान नहीं है, तजुर्बा नहीं है। तो तब अगर वो हमारे पास आके हमें पूछे तो हम उसे बेहतर सलाह दे पाएंगे कि नहीं। लेकिन अगर उसके पास वो हमारे साथ जो बॉन्ड है,
जो एक सिक्योरिटी, एक जो घनिष्ठता है, या जो जब वो वहाँ सुरक्षित महसूस करता है तभी तो आएगा हमारे पास। तो अगर वो ऐसा महसूस ही नहीं करता तो क्या वो हमारे पास आएगा 20 साल की उम्र में पूछने के लिए कि ऐसा करूँ क्या? नहीं आएगा। तो हमारा ये लॉन्ग टर्म प्लान है, ये हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। जैसे हम मकान बना रहे हैं तो हमारा नक्शा हमारे पास होना चाहिए, तो हम कुछ भी करेंगे उसका कुछ नतीजा आने नहीं वाला। तो वो है हमारा प्लान। तो हमारा प्लान क्या है कि हमें बच्चे को ईमानदार बनाना है, विनम्र बनाना है, स्वस्थ बनाना है, आत्मविश्वास। अगर उसका कुचलते रहेंगे हर बार कह के तू नालायक है, तुझसे नहीं होता है, या अगर आपका संबंध आपको उस समय अच्छा चाहिए, है ना, उसकी रिलेशनशिप अपने हमारे साथ भी और भी जो भी रिलेशनशिप होंगे वो भी अच्छे चाहिए, तो वो सब नींव हम अभी डाल रहे हैं। तो हमें प्लान को हमेशा याद रखना है कि हमारा प्लान डिसिप्लिन क्यों कर रहे हैं हम उसको। और अभी तो हम डर के कारण वो हमारी बात सुन लेता है, लेकिन जब हम नहीं होंगे 20 साल में वो हॉस्टल जाएगा तब हम देख नहीं रहे हैं, वो छड़ी नहीं है, वो आवाज नहीं है, तब क्या वो डिसिप्लिन रहेगा? तो शॉर्ट टर्म यानी कि अभी का लाभ तो मिल जाएगा, लेकिन जो लॉन्ग टर्म है प्लान जो हमारा होना चाहिए ये होना चाहिए। अभी होमवर्क खत्म हुआ या नहीं हुआ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये सब बातें। तो ये हमें प्लान को हमेशा ध्यान में रखना है। जैसे हम घर बनाते हैं तो प्लान ध्यान रखते हैं। तो दूसरा टूल्स है, उपकरण है ना, हमें पाना भी चाहिए या हथौड़ा भी चाहिए, बहुत सारे जो भी सब उपकरण है वो सब चाहिए। तो वैसे ही पेरेंटिंग में भी हमारे पास हमें कुछ उपकरण चाहिए, कुछ तौर तरीके चाहिए, और वो जो टूल्स हैं, औजार हैं, वो कैसे होंगे वो डिपेंड करेगा कि हमारा मटेरियल कैसा है। हम कई देशों में देखते हैं कि ऐसा कांच का घर बनाते हैं। अगर आप कांच का घर बना रहे हो और दूसरा आप ऐसे ईंट और सीमेंट का घर बना रहे हो या लकड़ी का घर बना रहे हो, तो सब में अलग अलग औजारों की आवश्यकता होगी। तो वैसे ही आपके बच्चे की प्रकृति कैसी है, अलग अलग प्रकृति होती है, और उसकी उम्र कितनी है, क्योंकि एक प्रकृति का बच्चा भी दूसरे प्रकृति के बच्चे से भिन्न है, और एक ही बच्चा अलग अलग उम्र में भी भिन्न है, उसकी समझ भी अलग है। अभी अगर 2 साल के बच्चे ने अपने पापा का टूथब्रश लिया और टॉयलेट में डाल दिया तो क्या होगा? पहला अक्ल नहीं है, ऐसे करते हैं। अब 2 साल के बच्चे को क्या अक्ल है? उसको पता है कि ये, उसको दिखता है यहाँ पे भी पानी है वॉश बेसिन में और यहाँ पे भी है, तो इसमें डाला, है ना। न्यूटन ने भी ऐसा एप्पल डाला तो नीचे गया, तो ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण देख रहा है, तो बच्चे को भी लगता है कि मैं ऐसे डालूंगा ये नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। अभी 2 साल का बच्चा क्या समझता है, वो कैसे सोचता है, आपको उसकी लेवल पर जाकर सोचना है। उसको कितना ज्ञान है, उसको कीटाणु का ज्ञान है कि इसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं, अभी मैं इसको लेकर तो ब्रश नहीं कर सकता। आपने उसको जो ये ऐसा कर दिया तो हर बार वो अगला कदम लेने से डरेगा, एक उसको झिझक, विड्रॉल जो बताया वो ऐसा हो जाएगा। तो हमें ये सब हमेशा अपना जो प्लान है वो याद रखना है, और जो टूल्स हैं यानी कि हमारे औजार किस प्रकार हम उसे नियंत्रित करेंगे, किस उम्र में हमें कैसे उसको समझाना है वो भी अलग होगा। हमारा मटेरियल कैसा है, हमारा बच्चा किस उम्र का है, किस प्रकृति का, ये सब हमें देखकर ध्यान देना पड़ेगा। और फिर हम सब कुछ प्लान के अनुसार कर रहे हैं, हम ईंट पत्थर सब लाए हैं, अचानक से कुछ फॉल्ट आ जाती है, ऐसा भी होता है ना। हम हमारे प्लान के अनुसार तो सब चलता नहीं है, कुछ नई तकलीफ आ गई जो हमने एंटिसिपेट ही नहीं की थी, सोची ही नहीं थी, तो उस समय फिर उसका एक करेक्टिव मेजर लेना पड़ेगा, उसको कुछ सुधारने के लिए एक नया प्लान बनाना पड़ेगा। तो वैसे ही आप ये कार्यशाला में सुनकर जाएंगे, एक मन में आपका होगा प्लान तो है ही कि लॉन्ग टर्म ऐसा करना है, लेकिन इस प्रकार से आप करेंगे, लेकिन फिर भी बाधाएं आएंगी, ऐसी नई सिचुएशंस आएंगी जो आपने कभी नहीं सोची होगी। तो ऐसा नहीं सोचना है कि बस खत्म, ये ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि ये चैलेंजेस हर हमारे व्यवसाय में भी आते रहते हैं, हमारी सेहत में भी आते रहते हैं, हर क्षेत्र में आते हैं। तो हर बार उसे एक नया एक मोड़ है ऐसा समझकर कि अभी मुझे हारना नहीं है, इसको छोड़ नहीं देना, हमारा लॉन्ग टर्म प्लान दिमाग में अपने नजर में रखना ही है, और फिर अलग अलग चीजें ट्राई करनी है कि इस प्रकार से नहीं हुआ तो उस प्रकार से। तो ये हमारा नेक्स्ट, तो जैसा हमने कहा कि लॉन्ग टर्म गोल है हमारा कि बच्चे को हमें ये सब बनाना है, और वो हमारा प्लान हुआ। टूल्स हुआ, 2 मुख्य टूल हैं, उपकरण हैं। एक है प्रोवाइडिंग वार्मथ, वार्मथ मतलब
अपना स्नेह, अपने प्रेम की गर्मी, है ना, मतलब वो गर्माहट, एक उसको सिक्योर लगना चाहिए, सुरक्षित लगना चाहिए कि ठीक है गलती हुई है लेकिन फिर भी मेरी मम्मी मेरे पापा मुझे प्यार करते हैं। वो फीलिंग कभी बच्चे के मन से जानी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि डिसिप्लिन नहीं करना है, मतलब डांटना नहीं है तो मतलब उसको जो मन चाहे करने देना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उसे हमेशा याद रहना चाहिए कि कुछ भी हो मैं अपने मम्मी पापा के पास जा सकता हूँ। तो ये जो रिलेशनशिप है ना, कि वो आपको 20 साल में कुछ गलत भी करेगा लेकिन आकर आपके उससे वो आपको संबंध, वो सेतु तोड़ना नहीं है, वो हमेशा आपको याद रखना है। तो इसलिए वो एक फीलिंग, वो प्रेम जो भी ये कर रहे हैं, वो मेरे कई बार क्या होता है बच्चा ऐसा सोचने लगता है तो मेरे पापा तो मतलब मेरे को इतना ऐसा करते, बच्चे ये नहीं सोचता है कि हम बच्चे को, बच्चा एक क्रिमिनल है। ऐसा आप सोचते हो कि बच्चा क्रिमिनल है? सब ऐसे ऐसे कर रहे हैं लेकिन अंदर हम सोचते हैं, जब हम उसे दंड देना चाहते हैं कि कैसे करा, कैसे इसने इतना बार समझाने के बाद कैसे किया, तो वो अंदर भाग एक सबकॉन्शियस लेवल पे आ जाता है कि इसको मुझे डिसिप्लिन सबक सिखाना है। ऐसा नहीं है। अगर आप एक क्लास में गए, ठीक है, आप एक नई लैंग्वेज मान लो संस्कृत सीख रहे, तो आप अभी तो आप जैसे 30-40 साल कितने ही हुए और टीचर आपको समझा रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा है, तो क्या होगा अगर टीचर कहे अक्ल नहीं है क्या, कितनी बार समझाया, बेवकूफ हो, कैसा लगेगा आपको? बहुत, आपको लगेगा इसको तो छोड़ दूं मैं, एक टीचर पढ़ाने लायक ही नहीं है। तो अगर आपको 40 साल 30 साल की उम्र में ऐसा लग सकता है, तो 2, 4, 5 साल के बच्चे को नहीं लगेगा क्या? उसकी तो समझ उतनी विकसित भी नहीं है। आप कैसा सोच रहे हो वो सोच ही नहीं सकता है। तो उसको तो यही अंदर से लगता है कि ये मुझे, तो ये ईगो जो है ना, एक जो हमारा पार जो है वो इक्वेशन ठीक नहीं है, क्योंकि हम सोचते हैं कि मेरे पास अधिकार है इसको ठीक करने का। हम भी कितनी सारी गलती करते हैं लेकिन हम इसको ठीक, मतलब ये एक क्रिमिनल है, इसको मुझे ठीक करना है, इसको सबक सिखाना है। जब तक हम इस सोच से ऑपरेट करेंगे तो वो कभी भी वो रिलेशनशिप नहीं बन सकता कि वो सीख रहा है, वो एक लर्नर है। जैसे हम एक क्लास में गए हैं या हमें टीचर कहे कि जाओ उधर कोने में जाके खड़े हो जाओ, तुमको नहीं आया। अभी आप सोचो इस अवस्था में आप संस्कृत सीखने आए और ऐसा आपको किसी ने कह दिया तो कैसे होगा? आप कभी उसकी क्लास में नहीं जाओगे, आप बोलोगे बेकार टीचर है। तो वैसे ही बच्चा हमारे बारे में सोचता है, क्योंकि हम उसको सिखा नहीं रहे, केवल अपनी जजमेंट सुना रहे। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट टूल या उपकरण है कि टू प्रोवाइड स्ट्रक्चर। एक तो वो प्रेम है, बंधन, हमारा संबंध है, वो कभी टूटना नहीं चाहिए, वो हमें याद रखना है। और उसे हमें, बच्चे को न केवल हमें अंदर से तो पता है कि वो संबंध है, लेकिन बच्चे को नहीं पता है ना, तो उसको जताना भी पड़ेगा। वो अलग अलग रूप हो सकते हैं उसको जताने के, वो हम आगे देखेंगे। और एक स्ट्रक्चर होना चाहिए कि किस प्रकार से आप उसको सिखाएंगे। तो ऐसा नहीं कि आपने एक बार उसको सिखा दिया तो वो सब सीख जाएगा। ऐसा होता है? आप कौन सी चीज एक बार सिखाने से सीख गए? कोई भी नहीं। तो वो एक सीढ़ी के जैसा है कि अभी बच्चा यहाँ पर है, फिर दूसरी सीढ़ी सीखेगा, फिर ऐसा, तो वो धीरे धीरे एक स्कैफोल्डिंग बनेगी, एक सीढ़ी बनेगी और वो उसमें समय लग सकता है। कभी कभी बच्चा फिसल भी सकता है और फिर थोड़ा, तो उसको हमें धीरे धीरे उसको वो स्ट्रक्चर देना है। और फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि ये सब करने के बावजूद प्रॉब्लम्स आएंगी जो आपने कभी सोची नहीं होंगी, और फिर से नए प्रकार से आपको फिर से सोचना पड़ेगा। हमेशा ये अपना प्लान ध्यान में रखते हुए। जो प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर का है उस पर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि ये अभी हम टेक्निक्स सीखेंगे पॉजिटिव डिसिप्लिन की। 3 टेक्निक्स हैं, तीनों में एक चीज कॉमन है कि अनुशासन हमें चिल्ला के मार के नहीं सिखाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाउंड्रीज, मतलब सीमा नहीं है। तो स्ट्रक्चर माने ये, जैसे ये मैंने बॉक्स ड्रॉ किया तो ये उसकी सीमा हुई ना, तो बच्चे और आपके बीच में ये अग्रीमेंट, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि दोनों को पता है कि ये सीमा है। बच्चे को एकदम क्लियर होना चाहिए माइंड में कि ये सीमा है। आपको मार के नहीं सिखाना है, ना कि चिल्ला के सिखाना है, लेकिन समझ से उसको समझाना है कि ये सीमा है, इसका उल्लंघन लक्ष्मण रेखा है ना, लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन नहीं करना है। रावण की धमकी नहीं देनी है, सिर्फ कहना है कि ये लक्ष्मण रेखा है, इसका उल्लंघन नहीं करना है। और फिर क्या हमें मतलब रावण तो लाने के बीच में, लेकिन क्या
हम रिवॉर्ड और पनिशमेंट क्या क्या ला सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। पहले जो कुछ हादसा हुआ, मतलब कुछ प्रॉब्लम हुई, समस्या आ गई है, उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, इमरजेंसी मेजर, मतलब अब समस्या हो गई है तो इमरजेंसी एक उपाय क्या है अभी का अभी, तो उसके बारे में पहले देखते हैं। उसका पहले का टाइटल है करेक्टिव। 3 प्रकार के, ठीक है। करेक्ट करना मतलब सुधारना। तो पहला पॉजिटिव डिसिप्लिन का एक अंग है करेक्टिव मेजर। करेक्टिव में 2 सब टाइप्स है, एक है रिवॉर्ड, दूसरा है पनिशमेंट। रिवॉर्ड पनिशमेंट नेगेटिव डिसिप्लिन में भी होता है लेकिन मैं उदाहरण देता हूँ कैसा होता है। पनिशमेंट नेगेटिव डिसिप्लिन में क्या होगा, मैं दूं उससे अच्छा आप ही दो। पनिशमेंट क्या होगा नेगेटिव डिसिप्लिन में, आप बताइए, मैं सुन लूंगा, माइक के बिना भी बता सकते हो, कोई बात नहीं। इसका आप बताओ, उसका मतलब ये नहीं कि आप करते हो, हाँ, इसका मतलब ये कि आप नहीं करते हो, आप बताओ क्या क्या और लोग क्या क्या करते हैं। आप तो यहाँ आए तो बहुत अच्छे हो, कहीं पे खड़ा कर देंगे, कान पकड़वाएंगे, हाँ, ये सब सुन लिया सबने, खड़ा कर दिया, कान पकड़ा दिया या कहीं कोने में बिठा दिया, ये सब जो हम करते हैं ये पनिशमेंट हो गई नेगेटिव डिसिप्लिन की। उसमें बच्चे को डर लगता है, आपका डर लगता है, जो कर रहा है उसके परिणाम का डर नहीं है, आपका डर है, तो उसको समझ नहीं है। रिवॉर्ड क्या होगा नेगेटिव डिसिप्लिन में, उसमें रिवॉर्ड भी होता है, हाँ, आप जो बोलोगे वो देखेंगे आपको। हाँ, एक्सीलेंट, कि आप जो कहोगे, जैसे उनको क्या चाहिए, उनको तो जो अच्छा लगता है वही चाहिए ना, जो अच्छा है उनके लिए पता ही नहीं है। तो लॉलीपॉप हुई या फोन हुआ, फोन पे मुझे वीडियो गेम खेलनी है, कुछ यूट्यूब देखना है, ये सब करना है, तो ये हम आपको देंगे, तो उसको लगता है ये रिवॉर्ड है, और पनिशमेंट ये मारना पीटना ये सब। तो ये पॉजिटिव डिसिप्लिन में रिवॉर्ड पनिशमेंट एक नीच नीच अधम स्तर पे है, लेकिन फिर भी इस प्रकार की नहीं है। तो क्या होगी कि अगर आपने ये बाउंड्री सेट कर दी कि अगर आपने होमवर्क कर लिया आज का 7 बजे तक, तो आपको जो अच्छा लगता है ना, जैसे कोई सब्जी और अच्छे जो उसके लिए है, दोनों का मिलन होना चाहिए, वो हम साथ में मिलकर बनाएंगे। तो रिवॉर्ड हुआ प्लस मतलब पॉजिटिव क्वालिटी टाइम जो हमने पहले डिस्कस किया था, तो उसके साथ क्वालिटी टाइम बिताना यही रिवॉर्ड है, ना कि स्क्रीन टाइम या जंक फूड या ये सब। तो उसके साथ तो उसको भी समझ में आएगा कि मम्मी के साथ या पापा के साथ टाइम बिताना यही एक इनाम है, पुरस्कार है अच्छा काम करने का, और यही वास्तव में यही मूल्यवान है ना, और इससे ज्यादा और क्या मूल्यवान हो सकता है। तो हम साथ में मिलकर करेंगे, साथ में मिलकर करेंगे, इसलिए इससे क्या होगा कि उसको सीखने को भी मिलेगा कि सब्जी में इंग्रेडिएंट्स क्या है, इसको बनाना कैसे होता है, वो भी सीख जाएगा, तो उसका होमवर्क भी होगा और ये भी होगा। वैसे ही पनिशमेंट में देखो, आपने कहा था मुझे कि 7 बजे तक आप होमवर्क संपन्न करोगे, लेकिन आपका होमवर्क खत्म नहीं हुआ है, तो हम आज ये सब्जी नहीं बनाएंगे जो हम दोनों को पसंद है, हम कल बनाएंगे। जब तक आप ये होमवर्क खत्म नहीं करोगे तब तक हम ये नहीं बनाएंगे। तो एकदम क्लियर हुआ, आपके मन में भी स्पष्टता है, आपके वाणी में भी स्पष्टता है, ना आपने अपने वॉल्यूम को ऊंचा किया, ना आपने कोई व्यंग्य का उपयोग किया, ना कोई नकारात्मक शब्दों का उपयोग किया, लेकिन आपने एकदम क्लियरली उसको कह दिया कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, और जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट आप अपने टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट खत्म नहीं करोगे तब तक मैं भी नहीं। कोई भी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होता है, आप कुछ भी बाय करते हो तो उसमें भी आता है ना, डू यू एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशंस। यस, अपना फोन सॉफ्टवेयर अपडेट करते हो उसमें भी आता है डू यू एग्री, तो हम तो पढ़ते ही नहीं, सीधा यस ही कर देते हैं। तो बच्चे को पढ़ाना है कि ये टर्म्स एंड कंडीशंस है, आप उसका पालन करो, मैं भी पालन करूंगी या करूंगा, उसके बाद आपको इनाम मिलेगा। इनाम क्या होगा, हम साथ में मिलकर कुछ बनाएंगे, कुछ रचनात्मक बनाएंगे। तो एक उदाहरण देखेंगे हम, टीचर्स का है, टीचर्स आपको दिखाएंगे प्रत्यक्ष कैसा लगता है। श्वेता, क्या कर रहे हो, मोबाइल क्यों देख रहे हो, होमवर्क कंप्लीट हुआ क्यों? 4 बजे से मैंने आपको होमवर्क दिया था ना, अभी तक क्यों कंप्लीट नहीं हुआ? मुझे आपको बार बार बोलना पड़ता है, हर रोज यही बात बोलनी पड़ती है, क्यों? होमवर्क अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं हुआ है? ये था वेरी इमीडिएट रिएक्शन आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि रोज ये सिचुएशन आती है, वर्सेस व्हाट कैन गो स्लाइटली डिफरेंट इन दिस।
श्वेता, क्या कर रहे हो? गेम खेल रही होमवर्क कंप्लीट किया? नहीं। क्यों? गेम खेलना है, लेकिन पहले होमवर्क तो कंप्लीट करना पड़ेगा ना। हाँ, तो अभी देखो, अगर आप 5 बजे तक आपका होमवर्क कंप्लीट कर लेते हो तो हम साथ में मिलकर आपकी एक पसंदीदा चीज बनाएंगे। कौन सी पता है? ठीक है, तो हम साथ में बनाएंगे, लेकिन अगर 5 बजे तक आपका होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ तो ये डील कैंसल। ओके, डन? आवाज ऊंची करना जरूरी नहीं है, ये इसका तात्पर्य था। सेकंड टेक्निक इज सपोर्टिव, जो हम एक्चुअली बार बार रिपीट करते आ रहे हैं। सपोर्टिव इज जस्ट द प्रेजेंस ऑफ द अडल्ट, कि कैसी भी ऐसी सिचुएशन में अगर आपका सपोर्ट रहे, सुपरविजन, तो आपने कुछ टास्क दिया तो आप ऐसा नहीं है कि उसको अकेले छोड़ दिया इंडिपेंडेंट, कि कर फिनिश करना है, हो जाना चाहिए, मैं देख, तो इंस्टेड ऑफ दैट आप अगर उनको बोलो कि ये टास्क करना है, फिनिश करना है, आपको कुछ पूछना है तो मैं हूँ यहाँ पे, डिफिकल्टी हो तो आप कहते लास्ट में मैं सारे क्वेश्चन आंसर करूँगी, तो आप ट्राई करो, मैं यहीं पे हूँ, आई एम विथ यू। दिस वे ऑफ सपोर्ट, कि आस पास रहना, कि उसको महसूस हो कि मैं इस चैलेंज में अकेला नहीं हूँ, मुझे ये काम अकेले नहीं करना है, मेरे साथ मम्मी पापा है जो मुझे समझेंगे। वो हुआ सुपरविजन। दूसरा है लिसनिंग, कि कुछ ऐसा डिफिकल्ट सिचुएशन, सिनेरियो, चैलेंजिंग सिचुएशन है जहाँ पे बच्चा ट्रिगर हो गया है, या तो रो रहा है, या तो चिल्ला रहा है, या तो जिद कर रहा है, ये सब बिहेवियर्स आ गए हैं, तो हम पहले उनको हमें सुनना पड़ेगा। अगर सुनेंगे तो उनको समझ पाएंगे, तो पहले सुनना है कि कहाँ से उसका रोना आ रहा है, तो हम शायद उसका ट्रिगर भी समझ पाएंगे। ध्यान से सुनेंगे तो हमें कभी कभी लगे कि मैटर बहुत बड़ी नहीं है, बच्चे के हिसाब से, बच्चा अपने हिसाब से रो रहा है या तो बोल भी नहीं पा रहा है, रोए जा रहा है, तो उसका रोना भी सुनिए। फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप करेंगे रोने से तो इट विल लीड, अब हमारा पूरा पाथ अलग हो जाएगा। तो हमें ये भी सुनना, लर्न करना है कि रोने को भी सुनना पड़ेगा। 5 मिनट रो रहा है तो कोई बात नहीं, सुनिए, शांति से उसका रोना सुनिए उसको, तो दैट इज लिसनिंग। और उसके नॉन वर्बल क्यूज, जो वो बोल भी नहीं पा रहा है, उसको भी सुनिए आप। तो एक विद इन यू, अगर आप इमीडिएटली वो आपका ढक्कन नहीं खुलेगा ना, जो मैम बोल रहे, तो आपको यू विल थिंक ऑफ 10 अदर वेज कि अब मैं इसको कैसे रिस्पॉन्स या कैसे इस चीज पे रिएक्ट करूँ या रिस्पॉन्ड करो। दूसरा है वैलिडेट, कि अगर वो रो रहा है या रो रही है तो उसका ट्रिगर कहीं और से है, तो वो अगर हमें ऑलरेडी अभी ये इस सेशन में हमें ये नॉलेज मिल गई है कि वो ज्यादातर जानबूझ के नहीं करते, शायद वो भूखा है, शायद उसको नहीं आता है, शायद उसका मन नहीं है, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा है, वो होमवर्क करना है पर उसको वो चैप्टर समझ ही नहीं आया है, या तो उसको नंबर्स ही समझ नहीं आ रहे, वट एवर द रीजन माइट बी, कि उसको अभी पूरा दिन बैठा है तो उसकी अभी एनर्जी कैपेसिटी नहीं है बैठने की, उसको घूमना है, मूवमेंट चाहिए, खेलना है। तो अगर ये सब हम ऑल द डिफरेंट रीजन ध्यान रखेंगे माइंड में, तो हम उसको वैलिडेट कर पाएंगे फीलिंग के, हाँ शायद आप थके हो इसलिए आपको ऐसा फील हो रहा है, तो मैं हूँ आपके साथ, मैं समझ सकती हूँ। तो वो हुआ वैलिडेटिंग द फीलिंग, वेदर इट्स एंगर या रोना आ रहा है या गुस्सा आ रहा है या तो चिड़चिड़ा, तो उसको वैलिडेट करना है। दूसरा हुआ बी रिस्पेक्टफुल एंड फर्म, जो सर ने अभी समझाया, बाउंड्रीज हमेशा क्लियर रखनी है। तो 5-10 मिनट रो लिया बच्चा, फिर अगर हम गिव अप कर लेंगे कि ठीक है दे दो चॉकलेट, ले चॉकलेट, बस शांत, तो मतलब हम ही खुद वो बाउंड्री के बाहर चले गए। तो ये मिक्स सिग्नल्स मिलते हैं बच्चों को कि मैं अभी इस लेवल का टेंशन, इस लेवल का गुस्सा करूंगा, इतना रोऊंगा तो काम तो भाई हो ही जाएगा। ठीक है, तो बाउंड्री के अंदर रहना है और आपको बाउंड्री के बाहर नहीं रहना है, यहाँ रह के आपको इंस्ट्रक्शन नहीं देना है, आपको उसके साथ इस बाउंड्री के अंदर कॉन्स्टेंटली रहना है। सो बीइंग सपोर्टिव, रिमाइंडर कॉन्स्टेंट कि सिचुएशन तो यही रहने वाली है, बदलने नहीं वाले, होमवर्क तो
है ही, कंप्लीट करना ही है। चॉकलेट हमारा टाइम है, संडे ही खाना है, तो ये बाउंड्री पर जो फील कर रहे हो मैं आपके साथ हूँ उस फीलिंग में, तो डोंट गिव अप एंड डोंट गिव इन, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। एंड लास्ट इज क्वेश्चनिंग, सवाल पूछना इज अ वेरी पावरफुल टूल फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमें लगता है कि हम बड़े हो गए हैं तो हमें सारे प्रॉब्लम्स के आंसर्स पता है कि होमवर्क कंप्लीट करने से ही नंबर 1 रैंक आएगा, ऐसा नहीं है। पर होमवर्क तो भी इम्पोर्टेंट है, तो हमें वो पता है पर बच्चे को नहीं पता है, तो हमें उसको सवाल पूछने पड़ेंगे कि क्यों आपको लगता है कि टीचर्स होमवर्क देते हैं, क्यों आपको लगता है कि हमें इस टाइम पे सो जाना चाहिए, क्यों हम रोज ब्रश करते हैं, क्यों आपको गुस्सा आता है, क्यों हम एक टॉय के लिए झगड़ते हैं। तो ये वाई के क्वेश्चन आप जितना पूछोगे तो बच्चा खुद ही एक्सप्रेस करना सीखेगा कि अच्छा ये इस चीज़ के हम ब्रश क्यों करते हैं क्योंकि इट्स गुड, या तो हेल्दी टीथ। वो जितना खुद अपने आपके सवाल का जवाब देगा तो उतना उसको कॉन्फिडेंस फील होगा कि नहीं ये सही है, वर्सेस आप उसको बोलोगे कि यही सही है, ऐसा ही करना है, ऐसा करोगे तो ये ऐसा होगा। तो आस्क क्वेश्चंस और आंसर्स उनसे ही निकल पाओ। उसका एक उदाहरण देखेंगे हम, सपोर्टिव। यहाँ बच्चा कुछ किसी के साथ खेल रहा था और किसी ने उसका टॉय छीन के ले लिया, अब बच्चा रो रहा है। क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? छोटी छोटी बात के लिए रोते रहते हो, बंद करो रोना, हमेशा का रोना होता है। इमीडिएटली बिकॉज हम रोना बेयर नहीं कर पाते मोस्ट ऑफ द टाइम, वर्सेस क्या हो गया बेटा? ओके, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, दुख होता है ना, कोई बात नहीं, इट्स ओके, ठीक है, आई एम देयर फॉर यू। जो भी प्रॉब्लम है हम मिलकर सॉल्व कर लेंगे, ओके, इट्स ओके, कोई बात नहीं। सिंपल। शायद इसके बाद भी ऐसा हो कि रोना कंटिन्यूस चल रहा है, ठीक है, पर कोई बात नहीं, जस्ट सिट नेक्स्ट टू द चाइल्ड, उसके पास ही रहिए, उसको वो फील करवाइए कि मैं आपको बिल्कुल जज नहीं कर रहा हूँ ये रोने पे, तो मैं तो बिल्कुल आपको अभी मेरा लेक्चर नहीं चालू होगा, मैं हूँ। बिलीव कीजिए वो 5 मिनट्स मैक्स 10 मिनट्स दे काम डाउन ऑन देयर ओन, बिकॉज चंचल है, उसको कुछ और सूझ जाएगा, कुछ और याद आ जाएगा। पर आप अगर उस वक्त में चिल्ला दोगे तो दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। एक ऑलरेडी प्रॉब्लम है और हम चिल्लाएंगे या तो हमारा ज्ञान तभी शेयर करेंगे तो प्रॉब्लम नंबर 2 क्रिएट हो जाएगा। सो दिस इज वन एग्जाम्पल। और दूसरा है ब्रशिंग। सुबह सुबह की जो हमारी रूटीन होती है, सुबह जल्दी उठना, उसमें एक छोटा सा पीस के बच्चे ब्रश नहीं करना चाहते टाइम से, नहीं करना है बाद में, या तो ब्रश नहीं किया है टाइम से, ये एक सिनेरियो है। श्रद्धा, ब्रश हो गया बेटा आपका? नहीं। क्यों नहीं हुआ अभी तक? क्या प्रॉब्लम है आपको? तुम्हें डेली बोलना पड़ता है, फेड अप विद यू, मैं आपसे परेशान हो चुकी हूँ। क्यों ये सब करती हूँ? जब आपको पता ही है ये काम हमें डेली करना है तो डेली बोलना जरूरी है मेरा। चलो ब्रश करो। रोज क्या एक सेम इंस्ट्रक्शन देंगे तो एक एंगर आ जाएंगे। वी डोंट वांट टू रिपीट दिस इंस्ट्रक्शन, आपको समझ नहीं आता है। श्रद्धा, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? श्रद्धा, बेटा ब्रश किया आपने? नहीं किया, क्या हुआ? नींद है। ओह, मुझे भी नींद आ रही है। सेम जैसा आपको फील होता है ना, मुझे भी फील होता है बेटा। कोई बात नहीं, तो हम कुछ करते हैं आपकी नींद भगाने के लिए, और मेरी आप भगा दो प्लीज। तो आप मेरे ब्रश को लो, उसमें पेस्ट लगाओ और मैं आपके में लगाती हूँ, राइट? ये रखो, ओके, थैंक यू। तुम शुद्ध आप पकड़ो। हाँ, शक्ति ब्रश होगी, ओके, ब्रश शक्ति, brush the left brush. Yes, brush round and round, up and down. Very good. Well done. Can you show me it? Wow, Shraddha! My goodness, your teeth are so shiny. Please. Okay, show me. Oh my God, Shraddha, you are doing it. Well done, Shraddha. Yeah, good activity. Thank you so much, ma'am.
तो आपको लगेगा कि कैसे रोज इतना हम कर पाए, पर ये कंडीशनिंग है। अगर हम 1 2 3 रोज करेंगे, जैसे हमारे गुस्सा भी कंडीशनिंग से आया है, तो ये भी अगर हम रोज कोशिश करेंगे अलग अलग फॉर्मेट में, अलग अलग, सिर्फ टोन सही रखना है, हमेशा सोचना है कि हमें सपोर्ट करना है, हमें उनको रोज याद करवाना पड़ेगा, तो इट विल, बिलीव मी, चेंजेस आपको खुद दिखाई देंगे। तो ये हुआ सपोर्टिव। ये लास्ट पॉइंट है पॉजिटिव डिसीजन का। मुझे 2 मिनट लगेंगे एक्सप्लेन करने में। टीचर्स को एक्टिंग करना अच्छा लगता है, बताना तो पड़ेगा क्या है। तो ये अच्छा, इसके पहले मैं यहाँ बैठा था, मुझे एक उदाहरण मन में आया। जैसे आप दाल बना रहे हो, दाल तो बनाई है ना, तो उसमें मानो नमक ज्यादा पड़ गया गलती से, तो नेगेटिव डिसिप्लिन क्या होगा इसमें, इससे रिलेट करो आप। उसको जाने देना, दूसरी बनाना। इतनी दालें खत्म हो गई है। ऐसे बनाना क्या, अगली बार बनाएंगे, रोज तो बनती है। हाँ, मतलब जैसे प्रॉब्लम हुई है, ठीक है, आपने गुस्सा आएगा और सीधा उंगली जाएगी किसी और पे, किसकी वजह से ये हुआ है ना। ये नेगेटिव डिसिप्लिन का मैं उदाहरण दे रहा हूँ। दूसरा है कि पहला कौन सा था, पॉजिटिव डिसिप्लिन, करेक्टिव, तो उसको ठीक करना है, तो तुरंत से आपने उपाय ढूंढा, ये नहीं सोचा कि किसकी वजह से ये हुआ है, किसने मेरा ध्यान डिस्ट्रैक्ट कर दिया, किसने नमक ज्यादा डाला, मैंने तो इतना ही डाला था, किसी और ने भी डबल डाल दिया होता है। ये सब विचार है ना, इससे क्या होगी, दाल जल जाएगी आपकी, और दाल तो है नहीं, ज्यादा खत्म हो गई, तो अभी कोई उपाय है नहीं। तो उपाय पहला जो करेक्टिव था, उसमें आपको सोचना है कि इसको कैसे अब ठीक किया जाए इस मोमेंट में। मतलब ना अभी आपको पास्ट का नहीं देखना है कि क्या हुआ, किसने क्या किया, अभी का देखना है। तो क्या कर सकते हो, न्यू बनाइए दाल पहले। हाँ, आलू डाल सकते हो, भूखला डाल सकते हो, ब्रेड डाल सकते हो, ये सब डाल सकते हो, तो नमक थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये करेक्टिव था, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। और सपोर्टिव अभी जो देखा वो भी थोड़ा बहुत ऐसा ही था, मतलब प्रॉब्लम तो है ही, प्रॉब्लम को करेक्ट कर रहे हो। अब जो देखेंगे वो प्रिवेंटिव है, कि अब आपने करेक्ट कर दिया, ठीक है, आलू डाल दिया, और अभी के लिए ठीक है, इतनी बेहतरीन नहीं थी दाल पहले जैसी, लेकिन ठीक ठाक है। तो अब हमें क्या सोचना है कि भविष्य में ऐसा ना हो, तो इसके लिए हमें क्या करना है, वो होगा प्रिवेंटिव। तो प्रिवेंटिव में एक ही शब्द आपको ध्यान रखना है, व्हाई, ठीक है, इतना तो याद रहेगा ना। पॉजिटिव डिसिप्लिन का जो मूल है ये यही है, व्हाई मतलब क्यों। और हमें ये पता नहीं होता है, वैसे हमको लगता है कि हमें ऊपर का पता होता है, लेकिन वास्तविक रूप से बच्चा ऐसा बता क्यों कर रहा है, क्यों रो रहा है, क्यों खुश है, क्यों उसको ये चाहिए, क्यों ये नहीं चाहिए, इसके एकदम डीप जाना, मतलब एकदम मूल में जाना। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्वालिटी टाइम, जो मैंने पहले कहा था, उसके साथ बैठ के उसको देखना पड़ेगा ध्यान से, एक प्रकार का ध्यान है, उसको समझना पड़ेगा। उसको समझने के लिए अपने आप को समझना पड़ेगा कि मन कैसे काम करता है। उसको उसके साथ समय बिताते बिताते आपको उसका मन पता चलेगा, उसका व्यक्तित्व पता चलेगा, उसके संस्कार पता चलेंगे। तो आप उस प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ सकते हो कि वापस ये हो ही नहीं, मतलब कहना ही ना पड़े कि लक्ष्मण रेखा है, उसको खुद पता चल जाए, वो पहले ड्रॉ कर दे। आपके पहले कॉलेज में जाएगा तो आप थोड़ी होगे वहां उसको लक्ष्मण रेखा बताने के लिए, तो पहले से ही वो ही कहेगा कि नहीं, दारू नहीं पीना, ड्रग्स नहीं लेना। ये तो एकदम एक्सट्रीम एग्जांपल में दे रहा हूँ, लेकिन कुछ भी हो, मतलब क्या सही है क्या गलत है, किसी को कहना ना पड़े, उसको ना टीचर को कहना पड़े, ना पेरेंट को कहना पड़े, उसको खुद पता चले, क्योंकि उसके साथ क्वालिटी टाइम में आपने क्या संवाद किया, उसको बताया कि आप ये करोगे, ये नहीं कहा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उसको कमांडमेंट्स में आदेश नहीं देते, उसको कोई संदेश भी नहीं देना है कि ऐसे पुस्तक में ये लिखा है मतलब आपको कोई पैगंबर नहीं बनना है कि ये भगवान ने ऐसा कहा है, पुस्तक में ऐसा कहा है, कुछ नहीं करना है, ना उसको आदेश देना, भगवान खुद बनना है कि यही करना है, यही सही है, ये गलत है, ये भी नहीं कहना है। क्या करना है, उसको सिखाना है। हमारी संस्कृति में एक शब्द है जिसका कोई अनुवाद नहीं, कर्म। कर्म पता है ना, कर्म का सिद्धांत है, मतलब आप आग में हाथ डालोगे तो क्या होगा, हाथ जलेगा,
ठीक है, तो ये कर्म का सिद्धांत है। तो वैसे ही उसको समझाना है, ये नहीं कहना है कि आग में हाथ मत डालो, लेकिन देखो आग में हाथ डालोगे तो जलेगा, अगर नहीं डालोगे तो नहीं जलेगा, तो आप सुरक्षित हो। वैसे ये सिगरेट है, सिगरेट के पैकेट पे लिखा है कि पियोगे तो लंग कैंसर होगा, नहीं पियोगे तो आप सेहत में ठीक रहोगे। अब उसको ही डिसाइड कर लेना, लेकिन ये करने से लोग डरते हैं कि उसने गलत निर्णय ले लिया तो, लेकिन आपके कहने से वो गलत निर्णय लेगा। उसकी खुद की बुद्धि उसको प्रेरित करेगी कि नहीं पीना है, क्योंकि वो देख रहा है ना इसके उसको लंग कैंसर की वीडियोस दिखाओ, है ना। तो अभी हमारे बच्चे तो छोटे हैं, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ही कि आप अभी पढ़ोगे नहीं तो बाद में जाके दिखाओ उनको, सड़कों पे दिखाई कैसे कि पढ़ोगे नहीं तो ऐसा हो गया, और पढ़ोगे तो आप ऐसे ऐसे उदाहरण दो उनको, जैसे अब्दुल कलाम है, ऐसे उदाहरण दो कि कैसे लोग हमारे देश में हुए कि कहाँ से कहाँ पहुंच गए पढ़ाई से। ऐसे उदाहरण आप दे सकते हो कि आप मेहनत करोगे तो उसका ये फल है, मेहनत नहीं करोगे तो ये है। अब उसको कहना नहीं है क्या करना है, उसके ऊपर छोड़ना है, उसको निर्णय लेने दो। और शायद वो अगर गलत निर्णय ले तो क्या होगा, आप हमेशा तो होगे नहीं उसके साथ, तो अगर गलत ले भी लिया तो क्या होगा, वो खुद सीखेगा ना, या सीखेगी। आग में हाथ डालेगा तो जलेगा ना, लेकिन आपको ध्यान सुपरविजन था ना वो सपोर्टिव में, तो आप उसके साथ ही हो, तो इतना भयंकर कि उसका निर्णय नहीं होगा कि वो जलेगा, क्योंकि आप उसके साथ ही हो। मतलब बेबी स्टेप्स हो गए, बेबी स्टेप्स हो गए, तो अगर गिरेगा भी तो बहुत कम गिरेगा। तो उसको ऐसे स्टेप्स बताने हैं कि उसमें फेलियर ज्यादा ना हो, सक्सेस भी ज्यादा नहीं होगा, वो सीधा सक्सेस पे आप नहीं पहुंचे, छोटे छोटे सक्सेस होते हैं, और फेलियर भी छोटे छोटे होने चाहिए, ताकि हम उनसे उन फेलियर से सीख सके कुछ। ठीक है, तो और दूसरा पॉइंट लिखा है कस्टमाइजेशन, मतलब अगर आप बच्चे के साथ रहोगे तो सभी बच्चे अलग होते हैं, तो आपको फिर ये टेक्निक्स सब आपके बच्चे पे लागू होगी या नहीं वो आपको ही देखना है। शायद आपको कोई नई टेक्निक भी बनानी पड़ेगी, लेकिन ये संकेत आपको सहायक होगा उसके लिए। और ये जो फंडामेंटल्स है, जो प्लान बताया था, ये कभी बदलेगा नहीं, और ये कभी नहीं बदलेगा। वाई, ये कभी नहीं बदलेगा। इसको आप अगर पकड़ लोगे कि ऐसा क्यों कर रहा है, तो आप में सहानुभूति भी आएगी। जैसे वो स्कूल से आया और एकदम मतलब बैग यहाँ फेंका है, अपने जूते फेंका है, कपड़े फेंका है, तो आप उस पर गुस्सा हो जाओगे, उसका कोई परिणाम नहीं आएगा खास भविष्य में। लेकिन आप समझोगे कि क्या हुआ, शायद स्कूल में कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड है, क्रोधित है। स्कूल में क्या हुआ, किसके साथ हुआ, टीचर के साथ हुआ या कोई दोस्त मित्र के साथ हुआ, या गाड़ी में कुछ हुआ। तो ऐसे ढूंढने जाओगे तो सहानुभूति भी आएगी, और आप जड़ से उस समस्या को उखाड़ सकोगे कि वापस कभी ये हो ही नहीं, और वो तो भी मात्रा कम हो, उसकी इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता भी कम हो। तो ये मुख्य बात है प्रिवेंटिव में। और पॉजिटिव डिसिप्लिन सही में यही है, समझ के आपको टेक्निक अपनी बदल देनी है। एक ही टेक्निक, पता है कि ये टेक्निक काम नहीं करती है, कि गुस्सा करने से या रिवॉर्ड पनिशमेंट से भी कुछ फायदा नहीं होता है, तो उस टेक्निक को वहीं छोड़ देना है। ऐसा नहीं कि मैंने ये टेक्निक, अगर मैं करके ही बताऊंगा कि ये टेक्निक ही काम आएगी, ऐसा नहीं होता है। उस टेक्निक को छोड़ देना, आपके बच्चे के लिए जो टेक्निक काम आएगी उसको अपनाना है। तो इसके लिए समय बिताना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। तो पहले जो हमने कहा था, टाइम प्रायोरिटीज, मतलब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। समय, आपका बच्चा, इसलिए आपके बच्चे के लिए समय आपको निकालना पड़ेगा, उसके साथ समय बिताना पड़ेगा, उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, खुद के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, खुद के बिहेवियर के ऊपर। और लास्ट में क्या था, नॉलेज। तो नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा, अलग अलग टेक्निक सीखनी पड़ेगी। इस टेक्निक से काम नहीं होता है, दूसरी टेक्निक, तीसरी टेक्निक, कई टेक्निक्स है। जितने बच्चे उतनी टेक्निक्स है। चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना झूठ बोलने की या डराने की, धमकाने की कोई आवश्यकता नहीं। इतनी टेक्निक्स है, आप सोच तक नहीं सकते कि वो उपाय से, युक्ति से काम हो जाएगा। तो युक्ति से हो जाएगा तो क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करनी, और वो भी पता है कि इससे नुकसान ही नुकसान है, कोई फायदा है ही नहीं। कभी भी ऐसे हिंसक प्रवृत्ति से फायदा होता ही नहीं। तो अभी हम उदाहरण देखेंगे, हमारे टीचर उत्सुक है एक्टिंग करने। आइए। सर ने जो एग्जाम्पल दिया वही लेंगे कि बच्चा स्कूल से आता है और उसका स्कूल बैग, बुक्स, पेंसिल बॉक्स, उसकी जो चीज़ें हैं वो यहाँ वहाँ बिखरी पड़ेगी।
श्रद्धा, क्या कर रहे हो आप? मोबाइल खेल रहे हो, राइट? मैंने मना किया है ना, स्कूल से आया बड़ा मोबाइल नहीं देखना है या नहीं खेलना है। ये सारी क्या कहाँ रखा है सब? बुक्स, बैग, आपका लंच बॉक्स बाहर है, बॉटल बाहर है। कितनी बार मैंने कहा है स्कूल से आते हो तो सब चीजें बराबर से रखनी है। होमवर्क करने का बुक कहाँ रखनी चाहिए आपको? कहाँ रखनी चाहिए? फिर आपने कहाँ रखा है? बाहर। सिंपल सिचुएशन तो आप कैसे थोड़ा स्मार्टली हैंडल करोगे? हाय श्रद्धा, मम्मा इज बैक। क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे थे आप? वाओ, ओके, लवली। फिर आज स्कूल में क्या कराया आपको टीचर ने? वेरी गुड, लवली, वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? ओके, तो कल स्कूल जाना है? अच्छा, जल्दी जाना है या थोड़ा सा लेट जाना है स्कूल में? जल्दी जाना है, ओके। तो शायद आपने ऑर्गेनाइज कर लिया सारा, बुक और टाइम टेबल के हिसाब से बुक रख दिया? नहीं रखा? अच्छा अच्छा, ओके। अभी कल तो मम्मा को भी जाना है ऑफिस, तो फिर लेट जाना है, तो आपको शायद अगर बुक में या तो कैलेंडर में रेड मार्क मिलेगा तो चलेगा? तो क्या करना पड़ेगा? पैकिंग करनी। वाओ, लवली, ओके ओके। कल आपको टिफिन में मैं क्या बना कर दूँ? ओह वाओ, ठीक है। तो फिर मैं आपकी तैयारी करती हूँ, ठीक है? और फिर आपको क्या करना है? वाओ, लवली, ओके। प्रिवेंटिव ये रोज रोज होगा, तो रोज रोज हमको बताना नहीं है कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चनिंग किया, मैम ने क्वेश्चंस पूछे कि आपको जल्दी जाना है, लेट जाना है, आपको रिमार्क चाहिए, नहीं चाहिए। तो लेट द चाइल्ड डिसाइड कि मुझे क्या करना है, एंड देन लेट द चाइल्ड डिसाइड कि उसके लिए क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक क्या है, तो बैग पैक करनी पड़ेगी। निरंतर का ये अभ्यास होगा और वो खुद सेल्फ कंट्रोल, अपना स्वात्म नियंत्रण वो बनाएंगे। कम्युनिकेटिंग क्लियरली, जैसे पहले बात हुई कि उसकी कौन सी बाउंड्री है वो बताना ही है कि आपको ये तो करना ही है, होमवर्क खत्म करना ही है, ठीक है? उसके बाद हम ये करेंगे, हम साथ में खेलेंगे, हम साथ में जो भी करेंगे। और रिस्पेक्टिंग चिल्ड्रन एंड अर्निंग देयर रिस्पेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सोचते हैं मतलब बच्चे की क्या रिस्पेक्ट है ना, हम किसी अपने से बड़े की रिस्पेक्ट करते हैं। कभी आपको ऐसा हुआ होगा, आप काम पर जाते हैं, आप नौकरी करते हैं, तो वहां आपके बॉस ने आपको डांट दिया, बिना आपकी गलती से डांट दिया, हुआ है कभी ऐसा? या आपकी सास ने आपको बिना गलती से डांट दिया, किसी ने तो ऐसा जो आपके ऊपर है, आपकी गलती नहीं थी लेकिन फिर भी आपको डांट दिया, आपकी इंसल्ट कर दी, कैसा लगता है आपको? कैसा लगता है? गुस्सा आता है, गुस्सा आता है। तो आप बॉस को या सास को एक थप्पड़ लगा के आते लगाते या कुछ अपशब्द बोलते नहीं, है ना? तो गुस्सा आता है मतलब क्या? ऐसा नहीं है कि सुसु आता है या पॉटी आती है कि मतलब अभी वो तो निकल ही जाएगा, ऐसा होता है क्या? तब मतलब ऐसा गुस्सा निकल जाता है सास के सामने, बॉस के सामने नहीं निकलता, अंदर बहुत गुस्सा है, मतलब मन कर रहा है इसका तो मुंह तोड़ दूं मैं आज, लेकिन वो निकलता नहीं है। लेकिन एक छोटा बच्चा है, वो पावर इक्वेशन अलग है ना, मतलब वो बेचारा निर्बल है आपके सामने, आपका यहाँ पे कंट्रोल है कि मैं ये, अब गुस्सा निकल जाता है। फिर हम बाद में बहुत पछताते भी हैं कि छोटे बच्चे को क्यों मैंने ऐसे मार दिया या उस पर क्यों चिल्ला दिया, लेकिन पर हम अपने आप को ऐसा समझाते हैं कि वो ही गुस्सा दिलाता है। अरे भाई, बॉस भी तो गुस्सा दिलाता है, सास भी गुस्सा दिलाती है, लेकिन उस समय निकलता नहीं है और यहाँ निकल जाता है। क्यों? क्योंकि आप सोचते हो कि आप वो पोजीशन ऑफ कंट्रोल में हो, कि आपको अधिकार है इसको कंट्रोल करने का, इसे सही गलत बताने का। वो भी सीख रहा है, जैसे हम सीख रहे हैं, हम भी गलतियां करते हैं, अपने आप को माफ कर देते हैं, लेकिन उसको हम बोलते हैं कि कैसे, मतलब इसने मेरे को डिसोबे कैसे किया, मैंने जो कहा वो मेरा इसने कैसे नहीं माना, तो हम वो एक हट पकड़ के बैठते हैं, तो हमारा ईगो एक अहम आ जाता है उसमें। और ये गाइडेंस है, यानी कि हम उसके गाइड हैं, हम उसके टीचर हैं, और
पेरेंट हो या टीचर हो, बच्चा तभी सीखेगा जब वो आपसे प्रेम करता है। अगर आपका संबंध नहीं है तो वो नहीं सीखेगा। तो पूरी बात संबंध बनाने पर है। तो ये जो क्वालिटी टाइम है, तो आपको उसके साथ संबंध बनाना है। फिर उसको वो गलती करने से इसलिए कतराएगा क्योंकि वो नहीं चाहता कि ये संबंध टूटे। तो इतना हमारा घनिष्ठ वो संबंध होना चाहिए कि उस संबंध के खातिर वो गलत ना करे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी मम्मी का दिल दुखे या वो मुझ पर नाराज हो, तो मैं ये कभी सह नहीं सकता, ऐसा मुझे मंजूर है ही नहीं, इसलिए मैं नहीं करूँगा गलत। तो ये भाव उसमें आएगा। तो पूरा जो फोकस है या हमारा केंद्र है वो इस संबंध पर है, और वो हम क्वालिटी टाइम से ही दे सकते हैं। अगर हमारी प्रायोरिटी यानी कि हमारी प्राथमिकता कुछ और है, हम अपना मजा करना चाहते हैं, रील देखना चाहते, जो भी कुछ करते हैं, तो वो संबंध कभी बनेगा नहीं। कभी आपने शादी के पहले और शादी के बाद आप सोचिए अपना समय। शादी के पहले अगर आपकी कुछ कोर्टशिप रही हो, डेटिंग रही हो, उस समय कैसे आप समय बिताना चाहते हैं एक दूसरे के साथ, है ना, वो समय ही महत्वपूर्ण है। और शादी के बाद कैसा हो जाता है, वो तो कर लेगी घर पर या वो अपना कर लेगा, लेकिन उससे पहले हम साथ में ही समय, कुछ भी छोटा छोटा काम भी है ना, या मार्केट भी जाना, सब्जी भी लेना, या कुछ भी जो भी आपने किया होगा, तो आप वो समय जो है ना साथ में बिताना, वो क्या कर रहे हो वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक दूसरे का साथ, वो क्वालिटी टाइम है। और वही बच्चा तो इतना छोटा है, तो उसको तो उसकी पूरी दुनिया ही आप है। तो अगर आप वो क्वालिटी टाइम दे पाएंगे तो आप उसके सबसे बेस्ट फ्रेंड होंगे, तो ही वो इस संबंध के खातिर कभी भी गलत नहीं करेगा। तो आप में से कोई शेयर करना चाहता है या प्रश्न पूछना चाहता है, क्या सीखे इसमें से? क्योंकि हमें भी ऐसा लगना चाहिए कि हम समझाने के प्रयास में सफल रहे कुछ हद तक। मतलब आप घर जाओगे तो एक दो शब्द क्या लेके जाओगे? पेशेंस। बिफोर बच्चे को समझाने से पहले हम लोगों को खुद को कुछ चीजें समझनी पड़ेगी, तब जाके हम लोग समझा सकते हैं बच्चे को। लाइक जैसे आपने बताया, पेशेंस हम लोगों को रखना पड़ेगा। नॉलेज गाइडेंस कहाँ पे कितना कैसे देना है, एट लाइक जैसे आपने टूल्स बताए, जैसे आपने टेक्निक्स बताई, कहाँ पे हम लोग पहले एक माइंड से बोलना ना कि प्लान डू चेक एक्ट, पहले हम लोगों को एक प्लान बनाना पड़ेगा, तब जाके हम लोग उसको एक यानी एक पहले मेंटल फिजिकली ये करना पड़ेगा, माइंड को सेट करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग उसके ऊपर काम करके फिर करेक्टिव, प्रिवेंटिव, सपोर्टिव जो भी हम लोगों को करना है वो हम लोग कर सकते हैं। तीनों बोल दिया, बहुत वेरी गुड। पीछे हमको भी सुनने को अच्छा लगता है। This is all about what, when and how, what I have understood, what has happened, वो हमको पता लगा है, लेकिन कहाँ हुआ है, बच्चे घर में ही सब करते हैं ऐसा थोड़ी है। वो तो जहाँ उसका मन किया, irrespective of anything, the place, people, environment, वो तो कर ही देगा। लेकिन हमको how to tackle यहाँ पर, why तो अभी पता है ही कि क्यों कर रहा है, अभी ये हमें क्लियर हो गया। मतलब जो आपने बताया टेक्निक्स, हमें डे बाय डे थिंग्स डिफर, सिचुएशंस डिफर, पीपल डिफर। आज इस बच्चे के साथ हुआ, कल किसी और के साथ भी हो सकता, और के साथ वी आर इंटर रिलेटेड। वैन में आ रहे हैं, वैन से जा रहे हैं, क्लास में समय जा रहा है, जो प्ले एरिया है वहाँ पे कुछ हो गया। तो जैसी जैसे सिचुएशन, उसका हमें हाउ टू डील विद दिस थिंग, तो वो हमको पहले उनको अंडरस्टैंड करके फिर हम अगर करेंगे तो इट विल बी अ वेरी अनब्रेकेबल बॉन्ड बिटवीन द पेरेंट्स एंड द चाइल्ड। सो दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड। 50-70 साल में ये कॉन्सेप्ट आया है, उसके पहले भी था, प्राचीन काल में था, लेकिन फिर एक ऐसी प्रथा चल पड़ी थी कि मारने पीटने से ही बच्चे समझते हैं, और ऐसे ही हमें समझाना, हम भी ऐसे माँ बाप भी सोचने लगते हैं कि हमको भी ऐसा ही हुआ तो हम आगे यही प्रथा चलाएंगे। कुछ और मेथड्स उनको पता ही नहीं है। हाँ, कुछ फैमिलीज, कुछ माँ बाप ऐसे है जो उनको लगता था अंदर से कि ये सही नहीं है, कुछ और भी हम कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मेजोरिटी वही फॉलो करती थी। स्कूल्स में भी
कहीं भी ऑफिस में भी बॉस ऐसे ही बात करते हैं सबऑर्डिनेट से, है ना। तो ये सभी जगह चलता है, ये ऐसा नहीं है। पावर इज सुपीरियर, मतलब मानो आपने कोई बड़ा कुश्ती वाला हो, जैसे को दाया सिंह जैसा, ठीक है, और दाया सिंह आपको एक हुक्का मारा है, आपने कहा कि, और वो बोले कि मैंने इसलिए मारा, उसने भी मुझे एक हुक्का मारा था, लेकिन आपका एक हुक्का उसका, उसमें क्या फर्क होगा? आपकी क्या ताकत है और उसकी क्या ताकत है? वो ट्रेन्ड प्रोफेशनल रेसलर है, कुश्ती वाला, तो उसमें शक्ति, उसका एक हुक्का मतलब आपके 20 हुक्के की बराबर है। तो इसलिए बच्चे, आप कुछ बच्चे को करेंगे, बच्चे आपको कुछ करे, उसका असर इतना नहीं होता जितना कि आप बच्चे को कुछ भी कहो, एक शब्द भी कहो कि मूर्ख, आपको लगता है उसमें क्या होगा, मैं तो उसको मोटिवेट कर रहा हूँ, लेकिन ये तो डीमोटिवेटिंग होगा, और फिर अपने आप को मूर्ख ही समझेगा, और फिर कभी भी जीवन में आगे कुछ कर नहीं पाएगा। तो पहले तो अपने मन में स्पष्टता हो, जिज्ञासा हो कि जानना है, समझना है, ना कि प्रतिक्रिया में उलझना है। समझकर, जानते हुए, जागरूकता से हमें सिचुएशन, मतलब कोई भी परिस्थिति के अनुकूल प्रतिक्रिया करनी है। हाँ या ना बताओ। कुछ लोग अभी भी सोच रहे कि अरे बोल तो सकते हो ना, चिल्लाना है बच्चे पे, अभी भी कुछ है पीछे जो चिल्लाएंगे ही, करेंगे तो वही जो करते आए हैं, लेकिन यहाँ के कुछ लोग 11:30 का अटेंडेंस लेके चले गए कि साइन कर दिया। नहीं चिल्लाना है कि नहीं चिल्लाना, उससे कोई फायदा नहीं होगा। अभी से बता देता हूँ, ऐसा क्यों अपने बच्चे पे ऐसे प्रयोग करना, कोई फायदा होने वाला है नहीं उससे। क्या ऐसी व्यंग्यात्मक या नकारात्मक बातें उसको सुनानी है? सोच रहे नहीं, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। बच्चे को समझना है, हाँ या ना, समझना पड़ेगा बच्चे को। उसके लिए क्या चाहिए? धैर्य, समय निकालना पड़ेगा, और कितना समय, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो अगर कुछ गलती हुई, मतलब अगर आप में फ्रस्ट्रेशन आया, तो गलती बच्चे की नहीं है, आपकी है ना। और ये सिर्फ पेरेंट्स के नहीं, टीचर्स हो, बॉस हो, नेता हो, कोई भी हो, गलती सामने वाले की, जो जब पावर एसिमिलिटी होती है ना, जब कोई शक्तिमान होता है और शक्तिहीन होता है, शक्तिमान के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी होती है, गलती उसकी है। राम राज्य में कुछ गलत होता है तो जिम्मेदारी राम की होती है, इसलिए उसे हम तपस्वी राम राजा कहते हैं। वो राम, राजा राम जो है, हम राजा राम कहते हैं, है ना। राजा का जो आदर्श है वो राम है। अभी दीपावली आने वाली है तो हम उससे संपन्न करते हैं, उनको ये स्मरण में लाते हैं कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन को त्याग दिया समाज के लिए, समाज राज्य के उद्धार के लिए। तो हम कम से कम अपने बच्चे के लिए अपने व्यक्तिगत जीवन को तो त्याग सकते हैं, उसमें से इतना समय मिलेगा आपको कि आप सोच नहीं सकते। आपका ध्येय एक ही होना चाहिए कि बच्चे को हम एक अच्छा नागरिक बनाएं, सफल, उसका जीवन सफल हो, सार्थक हो, मनुष्य जीवन बनने का जो लाभ है वो उसे प्राप्त हो, सुख शांति समृद्धि हमारे सबके जीवन में आए। यही लक्ष्मी की पूजा हम क्यों करते हैं दीपावली को? इसीलिए तो करते हैं। तो कब आएगी लक्ष्मी? जब हमारे में सरस्वती होगी, नहीं तो लक्ष्मी के साथ अलक्ष्मी आती है और कलह पैदा होता है। तो ये हमें सबको ध्यान में रखना है कि समझना है, समझाना नहीं है बच्चे को, कुछ समझना है, इतना समझना है, और बच्चे को प्रेरित करना है कि वो खुद भी अपने आप को समझे, ताकि आपको निरंतर करना ना पड़े, वो खुद समझ जाए कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है। और उपनिषद में जो मंत्र की बात की वो आता है कि श्रेष्ठ प्रियश्च मनुष्य में, तो सामने, हर मनुष्य के सामने हमेशा दो विकल्प रहते ही है, श्रेय और प्रिय, जो अच्छा लगता है और जो अच्छा है। श्रेयश्च प्रियश्च मनुष्य में तो संपरित्य विविनक्ति धीरः, कि सामने दो विकल्प हर मनुष्य के हर क्षण होते हैं, लेकिन जो धीर व्यक्ति होता है, जिसमें बुद्धि होती है, जिसकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है, दक्ष होती है, वो हमेशा किसको चुनता है? जो अच्छा है, मतलब श्रेयस, श्रेय जो है, ना कि प्रेयस। और एक समय ऐसा आता है जो श्रेयस है वही हमें प्रिय लगने लगता है, कि जो अच्छा हमारे लिए है वही हमें अच्छा लगता है। ये वास्तविक डिसिप्लिन हो जाएगा कि कुछ करना ना पड़े, सोचना ना पड़े कि नहीं करना है, अपने आप नहीं होगा, और जो करना चाहिए वो अपने आप हो जाएगा। तो ये सफलता होगी केवल हमारे कार्यशाला की नहीं, या विद्यालय की या पाठशाला की नहीं, लेकिन हमारे समाज की सफलता होगी। तो आपका योगदान इसमें आवश्यक है। हम तो
6 घंटे बच्चे के साथ होते हैं, आप 18 घंटे होते हो। तो इस पे ध्यान दें और हम सब के जीवन में सुख शांति समृद्धि आए, यही हम प्रार्थना करते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू।